Morning, everyone. So thank you so much for joining us today. थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ एग्जैक्टली है क्या, व्हाट आर वी डूइंग एग्जैक्टली इन दिस थिंग। आई बिलीव कि बात करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एंड सो वी नीड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर एवरीबडी ऑफ अस कैन हैव अ डायलॉग एंड शेयर आवर बेस्ट प्रैक्टिसेस। एंड आप सब अपने अपनी फील्ड के महारथी हैं। एंड इस इंडस्ट्री में 5 साल से 20 साल तक सभी हैं। So the idea is to find out what are the common problems. Let's share the best practices and move ahead in life. ताकि हम जितनी जल्दी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करेंगे उतनी जल्दी हम सब ग्रो कर पाएंगे। सो अलाउ मी टू स्टार्ट दिस थिंग। आज का जो सेशन है, वी विल कीप इट अराउंड द वर्ड टीम। एंड सो द वर्ड टीम एक्चुअली इसका मतलब क्या है? So trends, education, awareness, and monitoring. So we have to put an agenda to this discussion because training and leadership could be a very very broad thing जहाँ पे हम ट्रेनिंग काफी ज्यादा डिस्कशन कर सकते हैं। तो हम अपनी डिस्कशन को इन 4 शब्दों में बांधेंगे और इसी के आसपास बात करेंगे कि ट्रेंड्स क्या हैं। एजुकेशन मीन्स द डिलीवरी ऑफ द एक्चुअल कंटेंट, हाउ डू वी डू इट। Awareness is something where a life coaches might get an awareness about the social impact. How do I bring change in myself? Yes, किसी को अपने goal setting करने, so these all come under the awareness section that we look at. Then monitoring is how do I do an assessment? Do I really have achieved जो मैं ट्रेनिंग में अचीव करने गया था, या it is all fake thing? So we'll keep a discussion around this. Let's have a quick intro for each one of us. We'll have 60 seconds for everyone to share just a brief what they have, and probably we can start with the youngest of our lot, which is Shatabdi. So Shatabdi, I think we can start from your intro and then we can move forward. Sure, sir. Good morning, everyone. So, myself Shatabdi, currently working in Ion Exchange. So, accomplished direct selling and network marketing professional with over 14 years of proven expertise in driving growth, building high performing teams, and executing successful brand promotion campaigns across East India. Thank you so much. Okay, I think let's Somnathji, we'll move forward. Yeah, good morning, everyone. Hope I am audible right now. Yes. Okay, so I am Somnath Niyogi, and currently I'm working with International Marketing Corporation Private Limited, that is IMC for short, as the General Manager of Trainings, and I hold close to around 1.5 decade of experience in the direct selling industry and over 2 decades of total experience spanning across pharmaceutical, FMCG, direct selling, and lot many other things that I've done. And training being my forte, and I'm here to learn and grow together with each and every one of you. And thank you so much for sharing the stage with me here right now. Please Somnathji. Ikram bhai. Yeah, good morning, everyone. My name is Ikram Khan, and I'm working as a Vice President Training in Dejua for last 5 years. I've got around 25 years of experience in direct selling, and I've launched 5, 6 companies. Just I launched Dejua Nepal. Okay, that was the seventh company. And frankly speaking, I've got a very big respect for the trainers and the training departments, and especially direct selling, because we have given our life to this industry and we have seen the tremendous changes in this industry. And I would like to thank Raul sir and the team for giving an opportunity, okay, where I can share my thought process. Thank you very much, sir. Yes, I'll give all the details, and I'm not going to open my cards, but yes, I'm going to share my ideas where we can have a very impactful training, not a GAN type training, but impactful training to change the life of the networkers and make them a leader, sir. Thank you very much, sir. Ikram bhai, moving forward, we will change this 60 second now into 30 seconds. So Shiv bhai, quick 30 second. Ashiv Arora, I'm into this direct selling industry since 2006 और पिछले 9 साल से into coaching and like अभी currently working with multiple companies setting up their educational system. मोटो ये है कि मैं लॉन्ग टर्म बेसिस में ही अभी कंपनीज के साथ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के साथ मल्टीपल कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ। Thank you, Sharad bhai. Are you there? Yeah, yeah, yeah.
सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शरत। सो मैं बेंगलुरु से बिलोंग करता हूँ। मैंने डायरेक्ट सेलिंग से ऑलमोस्ट 20 ईयर से जुड़ा हूँ। एंड पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग भी किया हूँ और एमबीए भी किया हूँ डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। और मैंने 5 किताबें लिखा है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, जो कन्नड़ा में अवेलेबल है लोकल लैंग्वेज में, अति शीघ्र हिंदी में भी आने वाले हैं। सो आई एम द कोच एंड कंसल्टेंट फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। थैंक यू सर। विनय भाई, विनय जी इज विद Good अस। morning. Yes, good morning, all. Good morning, all. Good Morning. morning, Rahul ji. Thanks for this beautiful opportunity. I'm an entrepreneur, leadership coach, and a speaker. I run two companies called Skillfix and Roots Education. Skillfix is completely into training corporates, MSMEs, startups, and universities in the area of leadership. Then my forte is in leadership and sales and communication. However, I have been engaged with industry since 19 years. 13 years actively, 6 years I've been into coaching side of direct selling. This is Vinay Patil. थैंक यू विनय। दीपक भाई। Hi everyone. So happy to Morning, be Deepak sir. Hi. So happy to be with each and every one of you. और राहुल जी हमेशा कोई ना कोई नए प्रयास करते रहते हैं, हम सबको मिलाते रहते हैं और इंडस्ट्री के लिए काम करते रहते हैं। तो happy to be here. As such for direct selling, 11 years I worked in direct selling, 2007 to 2018. So मैं फील्ड में था, डायरेक्ट सेलर था, and 2018 till date, now running training and consulting company. Core focus area is now digital transformation of people and companies, right? So we are working very aggressively, how to enable, how to empower people using AI, digital marketing, social media, and just help them make more money instantly. I mean, using all these tools. So that's the core on which we are working since last 1.5, 2 years. Training has been a passion. So, but training is slowly coming along with the AI, social media, digital marketing, and all these things. Yeah. Thank you so much. Thank you, everyone. Puneet Bhai, RP will come to your introduction, and so would Sweetie and Josna. Am I forgetting any guest? Any guest I have not given the opportunity to introduce? I think everybody's done with the guest. Okay. So, team, I will have to give my quick introduction. I'll give it, just keep it in 30 seconds. Been about 25 years in this industry. Been a direct seller, trainer, corporate trainer. Worked in research and training and L&D. Headed an Indian company, been a LinkedIn top voice in direct sales, and have a couple of newspapers we have featured. Important thing is that been part of this community also. Worked with Sabat Capgemini, Indigo, Microsoft, Deloitte, and Huskins and Amway. Part of the Amway training team. Actually, I was in there, and now been a keynote speaker with various government events, and have attended and delivered sessions on direct selling now. Been part of ASRA, which is a consumer voluntary organization which focuses on the consumer side, federation which focuses on the industry sides. This is what I do actually. These are the couple of things that we do, so that I'm doing this because I've realized that still I get the call that what exactly do we do as a company. So Direct Selling Today is a magazine. Direct Selling Training Academy is an academy which works with the government. We create a government modules. Direct Selling Conclave is an event platform. Indian Direct Selling Day is our biggest achievement, actually, the day where all direct sellers get together. PeopleWide Infotech is a consulting company. Blue Orange is a market promotion company with a tagline MRP. Noted is a nodal officer training academy which teaches only guidelines about the law for the organization. Direct Selling Insight Report is an industry insight report. What happens inside the industry? This is an research report comes up. And Profile, which is a new division that we have. Now let's look at the first topic that will be going on. We'll be discussing about the trends. Trends क्या हैं, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, और क्या जा चुका है. जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, 2004 में जब मैंने पहली बार ट्रेनिंग बनाई थी, तो मतलब उससे पहले मैं जब डायरेक्ट सेलर था सिर्फ ट्रेनिंग देता था, और एम्बे में भी सिर्फ ट्रेनिंग देता था, बनाई नहीं थी ट्रेनिंग. तो एक ट्रेनिंग में अटेंड करने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि लेट्स लुक एट समथिंग विच इज न्यू. तो उन्होंने मुझे ये फोटोग्राफ दिखाई, कहते हैं कि ये 30-40 साल पहले ये मोबाइल था, आज 40 साल बाद ये हो गया. 50 साल पहले गाड़ी ऐसी थी और 50 साल बाद गाड़ी ऐसी आ गई. फिर उन्होंने कहा कि कंप्यूटर ऐसा था. तो आई बिलीव शताब्दी एंड स्वीटी माइट हैव नॉट इवन सीन दिस इज अ 286 पेंटियम जो उस पर काम करते थे. सो मे बी द ओल्ड स्कूल वालों को पता होगा. नाउ माय सन और योर गर्लफ्रेंड्स probably would be using this Mac 8 Pro. But the training as perspective, as a trend, is still a very, very classroom oriented. Infrastructure change हो गया है. Maybe the LCD and projectors have come up, but it is still kind of thing, कि जहाँ पे हम बात करते हैं कि deliverance is still a very, very classroom oriented deliverance. Now, the question is, what are the training delivery trends you're looking for next 1 year?
नो, ये क्वेश्चन पहले 5 साल का होता था। जब हम ये ट्रेनिंग ये सेशन करते थे तो उसमें 5 साल का पूछते थे। आज सुबह सुबह मैंने स्वीटी को बोला इसे 5 साल से 1 साल पे लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम इतनी जल्दी बदलता है तो ये करना मुश्किल है। So Vinay ji, I'll start with you because Vinay ji is one person which does about 360-degree kinds of training, from a class 7 or a class 6 student to 60-year-old professors. Vinay bhai has actually gone ahead और अपने कॉलेज के प्रोफेसर जो उनको पढ़ाते थे उनको भी सिखाते हैं आज की डेट में जाके। So Vinay bhai, what do you think? What will be the delivery trends for the next 1 year? Yeah, am I And audible? yeah, please. Yeah. Yeah, thank you so much, Rahulji. That's so kind of you. See, I know trends. Yes, I can talk about the latest trends with respect to, as Deepak ji was mentioning about AI-driven solutions. Everybody is trying to bring AI into in the forefront. However, I am little old school in this area. Even though I have done umpteen number of trainings in different way, but in this aspect, I believe in the fundamentals, which is whether you like it or not, how much ever online we move, the human touch can't be negated, right? So fundamentally, we may see the foundation is always the human touch. So you said, right, we may have events in conferences, we may have events in the banquet halls or in auditoriums. See that anything can't replace it, right? That is the fundamental, that is a must. However, like the way we have moved to Zoom, right? Post COVID, the way we are able to connect right now, to certain extent, definitely it is an enhancer. If I put it in, because I was invested in one company where I was researching a lot. One direct selling company, I'd not like to take a name. They have developed app, right, through which fundamentally what used to happen to bring everybody on same page. There were it was not easy because everybody has different set of appliance, different approach. So what they did, at least the basic training, when they get into this industry, they started what to say, recording the modules. And these modules were such basic. I'm not telling that, see, other trainings, not everything can be recorded on modules. It can be, I'm not saying it can't be. However, the impact will be less when it we go online. So on that note, trends, yes, definitely people are building apps with respect to direct selling where they are creating what to say, the kind of journey of training. It's not like, okay, there is dal diya bas khatam ho gaya. They are trying to create some sort of interventions where people can take quizzes, people are checking their knowledge, right? See, this is where I can see, but the foundation still remains. I am telling you, it's old school. I believe in that because the foundation has to be human touch. थैंक यू विनय जी। तो विनय जी का बड़ा अच्छा assumption है कि it has to be balance between the online and offline, probably an old school thought where ज्ञान तो मिलके ही दिया जा सकता है, सामने बिठा के दिया जा सकता है, क्योंकि आधा ज्ञान शब्दों में है तो आधा ज्ञान देखने में भी है। On this note, I'll ask Sharad ji. Sharad ji has been one person who has been very, very consistent in doing very, very direct selling awareness in Karnataka. A very grassroots level person, और कन्नड़ा में वो गांव में जाके भी किसी को समझाते हैं और बहुत पॉजिटिविटी मेंटेन करते हैं। सो शरद जी, गांव में ट्रेनिंग देनी है तो क्या ऑनलाइन या ट्रेंड से एआई चलेगा, या अभी भी बैठ के पेपर पे और बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे या फ्लिप चार्ट पे समझाना है? या सो थैंक यू सर। सर जैसे मेरा कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग में जैसे लोग आ रहे हैं ना, सो जितना ज्यादा एजुकेटेड लोग नहीं आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, थोड़ा कम एजुकेटेड लोग आते हैं। तो हमको 70% ऑफलाइन करना पड़ेगा और 30% ऑनलाइन करना पड़ेगा। जैसे कि हमको इनको कुछ क्लैरिटी देने के लिए और एनहांस देने के लिए हम उनको ऑनलाइन में लेके आके थोड़ा कंपनी के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में और क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना है ये सारे चीज समझा सकते हैं। और उसके अलावा हम उनको गांव से बाहर, घर से बाहर लेके आके हम फिजिकली उनको ट्रेनिंग करने से बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा सर थोड़ा कम पढ़ा लिखा वाले ही 70% क्राउड इज बिलो पावर्टी या मिडिल क्लास से भी बिलो रहते हैं। सो मेरे ख्याल से ऑनलाइन उन लोगों को टच नहीं हो पा रहा है, सो इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं ऑनलाइन में, डायरेक्ट सेलिंग में। थैंक यू शरद जी। सो शरद जी इज ऑलमोस्ट लाइक द सेम विनय जी के थॉट प्रोसेस से कि अबाउट 70-30 का बैलेंस होना चाहिए। I'll come to Deepak ji. Deepak ji, a transition from a very, very excellent trainer and somebody I've learned actually. So I have not attended many trainings in life and unfortunately I've missed out on so many trainings. But दीपक भाई की एक ट्रेनिंग अटेंड की थी जिसमें एक चीज मुझे समझ में आया था, सेल व्हाट इज देयर टू सेल एंड डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी।
सो ये दीपक भाई की एक लाइन थी जो मैंने नोट करी थी ट्रेनिंग में, रायपुर में उनके साथ टाइम बिताने का मौका मिला था। दीपक भाई, is online and social media the only way to do training, or is there any other way? You think there will be a balance between the offline and online? सी एक होता है बहती गंगा में हाथ धोना और ट्रेंड्स के साथ चलना। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डूइंग एन ऑनलाइन ट्रेनिंग इज पीपल आर एनीवे ऑनलाइन, तो आपको उनको इंस्टाग्राम में बुलाना नहीं है, right? What I feel in last 2 3 years, number of hall meetings and number of physical trainings जो पहले attendance हुआ करती थी and जो numbers हुआ करते थे, they have dipped like crazy and people are struggling, like leaders are struggling halls भरने के लिए। और कोविड ने लोगों को इस ईज को रियलाइज करवा दिया कि घर बैठ के भी ट्रेनिंग की जा सकती है। सम पीपल हैव मूव टू हाइब्रिड मॉडल, सम पीपल आर स्टिल हम कोशिश करते रहेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे, उस मोड में है कि हम चलते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, चलते रहेंगे। बट factually, if you ask me, I released my first book 6.5 years back in 2018। और मैंने जीवन में जो जो सिखाता था मैं लोगों को फेस टू फेस, वो सारी चीजें उस बुक में थी। दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स, जो मेरी समझ के अनुसार है कि इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स इन डायरेक्ट सेलिंग। देन आफ्टर दैट, I don't have the exact number, but I guess 500 to 1,000 books have been written on direct selling training in last 5 to 6 years. If 1,000 books full of training, average length is 150 pages. So जो पहले सिखाया जाता था face to face, everything is now accessible through books in multiple languages, through YouTube video. It's overflowing with content. So list making, selection, show the plan, follow up, sales closing, how to get people to events. So all these things are ऑलरेडी अवेलेबल। जब मैं मेरे घर पे फ्री यूट्यूब वीडियो से या 200 150 रुपए की किताब से वो ले सकता हूं, तो मैं वो लेने के लिए क्यों जाऊं? And there has to be one distinction. Irony is, direct sellers, so called, are the most trained people on earth, and still success ratio is the worst on earth. So we need to understand there is something fundamentally wrong the way we are training our people, we are treating our people. अगर ये ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त, मैंने ब्रह्मांड में इतने ज्यादा ट्रेनिंग किसी और प्रोफेशन में मिलते हुए नहीं देखा। उसके बाद भी 18 साल हो गए मुझे देखते हुए, नेगेटिविटी पहले से ज्यादा, एट्रिशन पहले से ज्यादा, इंडस्ट्री की ग्रोथ के जो एस्टिमेट हैं वो पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फिर ये साल में लाइक अच्छी अच्छी कंपनी में मैं जाता हूँ। आई हैव बीन टू सो मेनी डिफरेंट कंपनीज इन डिफरेंट जॉनर्स एंड इंडस्ट्रीज, right? Nobody gives that kind of a training that we are giving, so we need to cushion whatever we are doing। अगर उसमें सब कुछ सही है तो फिर हम फेल कहाँ हो रहे हैं, राइट? एंड अगर हम लोग उसको साल में 365 दिन जूम पे रोज सुबह लेके आते हैं, फिर शाम को लेके आते हैं, फिर अवार्ड भी देते हैं। सो आई हैव 2 3 things, let me summarize this. Number one, whatever was so called training given to direct seller is now accessible through multiple different formats, राइट? सो जब मुद्दा उसको सिखाने का ही है और ट्रेनिंग का मतलब उसको लिस्ट बनाना, शो द प्लान, फॉलो अप, ये सब चीज करना ही है, तो ये सब तो उसके पास 100 और मीडियम से है, राइट? सो व्हाई विल दे कम? इज नंबर वन। नंबर टू, आप उसे कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाएंगे, आपको भी पैसे खर्च करने हैं, उसको भी पैसे खर्च करने हैं। व्हेन 2.5 घंटा, इंडिया में 47 करोड़ लोग अभी ऑनलाइन एक्टिव यूजर हैं सोशल मीडिया के, और उनकी एवरेज जो टाइम है, द वे दे स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया इज 2.5 hours. So anyway, he is there on internet. Why can't we find some deep, immersive, beautiful ways कि उस 2.5 घंटे जब वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे है, उसके अंदर how do we sneak into that and then do the trainings? So I have a feeling कि बेसिक ट्रेनिंग्स जो हो रही हैं, मोटिवेशन जो हो रहा है, वो सब कुछ शिफ्ट हो गया है ऑलरेडी ऑनलाइन। बचा खुचा अगले 1 1.5 साल में हो जाएगा, and then it will be like real transformative training where we'll work on neurology, belief shift, habit shift, subconscious mind, where I need to have a person in front of me to deliver the change work. That is the only 10% part which has to be delivered online, offline, face to face, or maybe relationship building, or maybe feel good. That is the only thing we can do. Otherwise 90% we, और शायद हम अभी तक
ये बात मान नहीं रहे हैं, इसीलिए हम बाकी इंडस्ट्री से पीछे रह गए हैं। मतलब अगर ये बात हम 5 साल पहले मान जाते तो डायरेक्ट सेलिंग की ये स्थिति नहीं रहती आज जो स्थिति है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कोट एंड कोट आई एम सेइंग, इट्स थैंक यू माय सो टेक। मच दीपक जी। इट्स अ वेरी वेरी रेलेवेंट टॉक। और पिछले 2 साल के जो इंडस्ट्री के नंबर्स हैं, वी ऑल्सो नो दैट globally also there are a lot of challenges which have come up. So affiliate, e-commerce, and then there's another model, crypto का इफेक्ट था. But then overall, आपका बिजनेस कम इसलिए होता है क्योंकि आपके फंडामेंटल ठीक नहीं होते. बाहर वाला आके बिजनेस को आपको नहीं हिलाता है. यस, On this note, वेरी I'll ट्रू। go to a corporate guy. Somnath ji is a corporate guy. He's been part of the corporate training program, and we'll have a different perspective now. So, Somnath ji, you being a corporate training L&D head and for a while, so आपको क्या लगता है कि what are the trends looking at? Are really corporates looking to change the training mechanism, or do they really think कि अभी तक जो चलता आ रहा है वो ही चलेगा? Well, I totally agree with Deepak Bhai what he just said now, because the way things are moving, and really great insights you just shared. Thank you so much, Deepak ji, for sharing those. And we माय प्लेजर। also met in Agra just a couple of days back in a training of IMC itself, if you remember. यस यस, एब्सोल्युटली। Yeah. So it's like one and the same thing. Even I am in agreement to that. You know what is exactly happening is कि हम हर तरीके से उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, whether it be classroom, whether it be Zoom training, whether it be bite size learning, e-learning, everything is there on the platter. और सही में ब्रह्मांड में इससे ज्यादा ट्रेनिंग कहीं किसी भी इंडस्ट्री में नहीं मिल रही होती है. What I have seen practically what is happening is कोविड के टाइम से थोड़ा सा जूम पे इंक्लिनेशन आया, और कंपनीज को ये लगने लगा कि हमारे लोग बिल्कुल डिजिटल हो चुके हैं, लेट्स पुश देम ऑल टुगेदर ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. सो सब अपने अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लेके आ गए. ऑब्वियसली ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कम्स विद कॉस्ट. सो उसके बाद सबका फोकस होने लगा कि ई लर्निंग को डेवलप करो. ई लर्निंग को डेवलप करने में जब पूरा फोकस चला गया, मतलब फोकस जब उधर चला गया, तो क्लासरूम ट्रेनिंग से फोकस हटा. अब जब पोस्ट कोविड वापस समझ में आया कि दैट ह्यूमन टच इज मिसिंग, यार क्लासरूम ट्रेनिंग में ही होना चाहिए. अब जब व्हेन वी आर आस्किंग देम टू कम डाउन टू क्लासरूम ट्रेनिंग, अब पसीने छूट रहे हैं. अब नाउ द पीपल आर आस्किंग कि सर जूम पे करा दो, ये वाला राइट। ट्रेनिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे करा दो. And what is happening is, I'll just tell you a live example. Just yesterday I conducted a training program on Zoom itself, jahan pe there were 1000 participants who attended the training, right? And the timing was so odd. That was early morning, 7 a.m. 7 a.m. to 8 a.m. training tha. There was 1000 participants who were there, and couple of them who were there in the waiting room, क्योंकि 1000 से ज्यादा वो नहीं था, participant capacity नहीं थी. But the same topic, the same training, and the same trainer, that is me, Somnath, was delivering the same training in Kanpur, sorry, not in Kanpur, but in Lucknow 5 days back, where I had only 100 odd participants, where there was a capacity of more than 300 participants in the training room. And it was a free training, no cost charged. वेरी। So what I have understood is people have, अंडरस्टूड कि यार ये ट्रेनिंग जो है ये तो हमें जूम पे मिल सकती है. हम उतनी दूर तक गाड़ी चला के जाएंगे, पेट्रोल खर्चा होगा, टाइम इतना इन्वेस्ट होगा, तो बेटर है जब ये ट्रेनिंग जूम पे हमें मिलेगी, वी विल टेक इट ऑन जूम. सो सोमनाथ देन जी, या सॉरी. आई थिंक द पॉइंट आपका वेल टेकन है. आई थिंक द रीजन जो आप चारों के लोगों से बात करके निकल के आए कि अल्टीमेटली इट इज वैल्यू फॉर मनी डिलीवरेंस है. अगर मुझे वैल्यू फॉर मनी ऑनलाइन मिल रहा है तो मैं ऑफलाइन नहीं जाऊंगा, और मुझे ऑफलाइन मिलेगा तो शायद मैं ऑनलाइन भी कर लूंगा. द क्वेश्चन इज कि हु इज डिलीवरिंग मोर वैल्यू. ऑन यस। दिस नोट विल टेक शताब्दी का विल टेक अ व्यू. शताब्दी, आप फीमेल को ट्रेन करते हैं एंड यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जॉनर इन फीमेल सेगमेंट विद कॉस्मेटिक. नाउ यू मूविंग इनटू द वाटर ट्रीटमेंट सेगमेंट. क्या ले फीमेल, हाउ डू दे रिएक्ट? डू आर दे कंफर्टेबल यू नो लर्निंग एज सच इन ऑनलाइन, और वो कहते हैं कि 11 से 12 के किटी पार्टी में ही सीखना है? व्हाट डू यू थिंक इज योर कॉल?
सर, जैसे सब लोगों ने बोला है कि लोगों जो भी हमारी डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं उनका प्रेफरेंस भी अलग अलग रहता है। किसी का लिटरेसी लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है, किसी का उतना ज्यादा नहीं रहता है। सो बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस दे प्रेफर कि ऑनलाइन और ऑफलाइन। आजकल बहुत सारे लोग हैं, जैसे किटी पार्टी की बात अगर करें तो वो लोग चाहते हैं कि अपना पूरा टाइम, अपना काम खत्म करके जो भी उनको फ्री टाइम मिले वहां पे वो लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग ले, अपने टाइम के हिसाब से अपने कंफर्टेबल जगह में बैठ के अपनी चीजों को सीखने का। और बहुत लोग ऐसे भी है कि जो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग को वो पर्सनल टच के लिए, प्रोडक्ट को सामने से देखने के लिए, सबसे मिलने के लिए हम लोग को ऑफलाइन ट्रेनिंग में अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। सो दोनों का ही प्रेफरेंस अलग अलग रहता है, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ द पीपल। आई थिंक शताब्दी आप सही कह रहे हो। आई थिंक इफ यू लुक एट द मार्केट, एक बड़ा ट्रेंड है आज की डेट में विच इज दी सुबह सुबह के जो फिटनेस जोन चलते हैं, फिटनेस क्लब चलते हैं, और जिमिंग के सुबह आजकल वो चलते हैं। आप पिलाटे कराते हैं, आप योगा कराते हैं, एंड देन यू सेल अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन दैट क्लब टेक्नोलॉजी। नाउ व्हेन यू लुक एट दैट स्ट्रैटेजी, बड़ा एक सिंपल सी चीज समझ में आती है कि आप लोगों से एक्चुअली फिजिकल काम करवाना चाहते हैं, लेकिन आप उसको ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन रखना चाहते हैं। करेक्ट। So which is a beautiful way of understanding कि how things will move forward. राइट। वो ऑनलाइन नहीं बैठ के कर रहे काम, वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, और आप उनको एक्चुअली ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दे रहे हो। सो प्रॉब्ली दिस इज समथिंग वी विल टेक इट फॉरवर्ड। आगे के क्वेश्चन में विल ऐड ऑन, तो शिव भाई, इकराम विल कम टू यू ऑन द नेक्स्ट part of this question. Now, which is the category trends? Now, see, the when question is, training will only happen when the mega trends will match. So when you look at trends, there is one trend which is direct selling trend as an industry. Then there are category trends, and then category में there are minor trends जो आप follow करते हैं, तभी आप predict कर पाते हैं कि क्या चीज grow करेगी. So Ikram bhai, your call on this. Do you think a company with 300 SKUs is a better trend these days, or 30 very very specific SKUs? And what is your take on cosmetics? Is it a growing trend? Is it not growing trend, or health and wellness? What is your call on this thing? थैंक यू राहुल भाई। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जैसे कि दीपक सर ने बोला, सोमनाथ सर ने और शताब्दी मैम ने बोला है, तो मैंने तो एक ऐसी कंपनी को भी लॉन्च किया जहां सिर्फ एक प्रोडक्ट था, और उस बाद में वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बनी है। ठीक है। तो सर बेसिकली क्या होता है कि आप 300 एसक्यू और 30 एसक्यू है, वो इम्पोर्टेंट मैटर नहीं, कितने फोकस्ड हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, हमारे कंज्यूमर्स हैं, हम किस तरह अपने प्रोडक्ट कैटेगरी को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं डेजोए की बात करूं, जहां की हिंदुस्तान में 6 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, नेपाल में 5 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, बिजनेस तो अभी भी हो रहा है सर, बिजनेस तो अभी भी हो रहा है। तो फोकस कितना है उस ब्रांड को, कितना उस प्रोडक्ट कैटेगरी को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं टू द पीपल, टू द मार्केट, सर वो इंपॉर्टेंट है नंबर 1। जहां कैटेगरी आपने कॉस्मेटिक्स और हेल्थ और वेलनेस के बोला, आप कोई भी कंपनी आप उठा के देख लें, द हेल्थ एंड वेलनेस प्ले अ मेजॉरिटी रोल सर। कहीं पर 60%, कहीं पर 70%। अगर मैं एनालिसिस करूं बिजनेस की, तो हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी का बहुत ही इंपैक्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले लोग जो हेल्थ की आज की बात करते हैं, और जो ट्रेंड आज के दिन में जो देख रहे हैं हम लोग, कोई भी कंपनी वो नई हो या पुरानी हो या 20 साल पहले स्टार्ट हुई हो, सब हम लोग शुरू से लेकर अभी तक सर हेल्थ और वेलनेस की बात करते हैं, हेल्थ को सबसे आगे रखते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को फिर बाद में हम लोग फॉलो करते हैं। उसमें कॉस्मेटिक्स भी होते हैं, एफएमसीजी भी होते हैं, सारा कुछ होता राम है। भाई, जस्ट टू टेक अ डीपर लुक, आपको क्या लगता है कि व्हाई कॉस्मेटिक एज अ डिवीजन इज गोइंग डाउन? इज इट क्वेश्चन कि कॉस्मेटिक की जो ट्रेनिंग होती थी, सी पहले मैं खुद शनाज हुसैन का हेड रह चुका हूँ, और हम फेशियल की जब ट्रेनिंग करते थे, ब्यूटी पार्लर ब्यूटिशियंस को बुलाते थे, या मेकअप की ट्रेनिंग देते थे, या स्किन केयर की ट्रेनिंग देते थे, दैट वाज अ फिजिकल ट्रेनिंग। बट नाउ इट इज कम्प्लीटली ऑनलाइन। डू यू थिंक कॉस्मेटिक हैज टू डू समथिंग विद द ट्रेनिंग, और कुछ और रीजन है कॉस्मेटिक की बिजनेस की कैटेगरी का थोड़ा सा कम आना, नीचे की तरफ आना? ये सब जैसे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉस्मेटिक्स इज नॉट, यहाँ की उसको और भी ब्रांडिंग होनी चाहिए थी, उसको और भी जहाँ के लोगों के सामने विथ मोर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जहाँ की हम लोग फेशियल, जैसे कि अभी भी इस कंपनी में हम लोग फेशियल की ट्रेनिंग करते हैं, लाइव ट्रेनिंग करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, लेकिन जो उसको फोकस मिलना चाहिए था उस कॉस्मेटिक्स को नहीं मिल पाया। क्योंकि मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि लोग पहले हेल्थ और वेलनेस पर आते हैं, वो 1 साल तक इस पर फोकस करते हैं, उसके बाद जाकर के वो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, या सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में कॉस्मेटिक्स या एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पर, जहाँ के एंट्री लेवल पे वो किसी के घर में जाते हैं। लेकिन सबसे पहला जो हेल्थ एंड वेलनेस होता है, उसके बाद ही कोई और कैटेगरी फॉलो करती है।
और कॉस्मेटिक्स में सर जैसा आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, अगर मैं 25 साल पहले जाऊं जहां की कंपनी का हम लोग बहुत ही महंगा होता था लेकिन लोग उस चीज पर फोकस करते थे, उस प्रोडक्ट पे एक एक क्रीम जो कि 2-2 हज़ार की होती थी लोग लेते थे। क्यों? क्योंकि फोकस, ब्रांडिंग, ट्रेनिंग बहुत ही एग्रेसिव लेवल का होता था। तो कॉस्मेटिक में अभी इस जनरेशन में सर वो चीज हम लोग मिस कर रहे हैं। थैंक यू इकराम भाई। शिव भाई विल कम टू यू नाउ। शिव जी, मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि अल्टीमेटली देखो, ट्रेनिंग जब हम कर रहे हैं तो दो चीजों की ट्रेनिंग है। वन इज एटीट्यूड एंड माइंडसेट एंड बिलीफ सिस्टम, एंड सेकंड इज एक्चुअली यू विल हैव टू टेल समबडी टू सेल समथिंग। बट द क्वेश्चन इज, अगर कैटेगरी ट्रेंड नहीं मूव कर रहे होंगे या हम गलत ट्रेंड में होंगे तो मेहनत उतनी गलत जगह डायरेक्शन में चली जाएगी। आपकी क्या कॉल है? कंपनी शुड लुक एट 300 प्रोडक्ट, 400 प्रोडक्ट लाइंस, और शुड लुक एट 30 प्रोडक्ट लाइन? क्योंकि डायरेक्ट सेलर को उतना फोकस ट्रेनिंग दिया जा सकता है और प्रोबेबली सिलेक्टेड डायरेक्ट सेलर ही सिस्टम में आ सकते हैं। सो व्हाट इज योर कॉल ऑन इट? If I say it from the company's perspective ना, तो अगर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो ऑब्वियसली आई वांट मोर लाइक नंबर्स टू फॉल इन माय कंपनी। तो मेरे पास 300 प्रोडक्ट्स होने चाहिए टू स्टार्ट विथ। कोई कंपनी स्टार्ट करती है 30 प्रोडक्ट से स्टार्ट करती है, लाइक फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर मैं एक डायरेक्ट सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्या चीज उनके बिजनेस के लिए अच्छा है, एक चीज मिसिंग है यहाँ पर। जो आपने कहा कि हम अभी फिजिकल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स की। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट सेलर प्रोडक्ट बेचने निकल जाता है, हमको एक्चुअली उसको यूजर बनाना है। अब अगर प्रोडक्ट ट्रेनिंग की यहाँ से जो कनेक्टिविटी आपका टॉक आगे बढ़ा, सेकंड क्वेश्चन में हम हैं, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग की लाइन पर आ गए हैं, राइट। सो अगर हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात करें, प्रोडक्ट ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, मतलब ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। तो ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा मेरे को कैसे पता चलेगा, अनटिल अनलेस आई डोंट यूज इट। लाइक सपोज आई एम अ गर्ल, मेरे को कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है, लाइक कोई भी, लाइक व्हाट डू यू से, एनी प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट की ट्रेनिंग तो होगी कि ये काम कैसे करता है, इसका मैसेजर कैसे करना है, कैसे इसका आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे। लेकिन मैंने कभी इसको यूज नहीं किया और मैं बेचने निकल जा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम प्रोडक्ट बेस में ये है कि लोग प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं, एंड दे वांट देयर टीम टू ग्रो, दे वांट कि हमारी इनकम बढ़े। तो अगर ओके। किसी ने ये प्रोडक्ट को यूज करना सीख लिया नो, खुद यूज कर लिया, तो अल्टीमेटली उसको यूज कर मतलब अपने वो क्लाइंट्स को, कंज्यूमर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को आगे गाइड करना तो और आसान हो जाएगा। और अगर उसको नहीं भी क्लैरिटी आई, सी और ही विल सीक द हेल्प ऑफ लाइक द प्रोडक्ट ट्रेनर्स, नो, कि हमको आगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बढ़ाना है। Shiv, on this note, we'll move on to the another topic, which is, अब आप में से बड़ा मिक्स क्राउड है। तो शताब्दी इज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, सोमनाथ जी इज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, इकराम भाई इज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर. Then we have Shiv, who's a motivational trainer and a life coach, and Deepak Vijay runs both the training and consulting and a digital marketing firm. Vinay Bhai runs a 360-degree training firm and a school and an education system. And then we also have Sharad Bhai, who runs a very good training academy based out of Bangalore. So very, very mixed crowd. The question is, in terms of the training, which is our biggest audience that we address? Do we address the consumer? Do we address the direct seller? Do we address the company owner? So what exactly are we addressing as a problem statement or as a solution we're looking at? Deepak Bhai, will start from you. What do you think is the market size? Which segment is the biggest for us? Okay, I believe Deepak Bhai Okay. is not connected with us. So I can move on to Vinayji. Vinayji, what do you Not think? there. Acha, He's there. okay. He's I'm there. so sorry. आप ऐसे मत करो यार मेरे साथ, मतलब आप निकाल देते हो मुझे। आपको निकालना मतलब गूगल की उसकी बात नहीं है यार. ओके, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ट्रेनिंग्स जरूरी तो हैं, यू नो, बट व्हेन प्रोडक्ट्स आर देयर, जहाँ पे प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स की जहाँ पे उनका यूसेज थोड़ा अलग तरीके से किया जाए तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। एंड दोज प्रोडक्ट्स विच आर नॉट जनरली नोन विद पीपल, एफएमसीजी वगैरह, इन सबको अगर हम छोड़ दें तो कुछ खास किट्स हैं अगर किसी के पास, या कुछ हेल्थ केयर के कोई बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कमाल के रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग होना कंपलसरी है, दैट प्रोडक्ट ट्रेनिंग। बट आई बिलीव इन दोनों ट्रेनिंग्स को सेपरेट रखना चाहिए। वन इज वेरी वेरी सिंपल, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, इसमें और कुछ नहीं डालना चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू बिजनेस ट्रेनिंग, देन वी शुड डू बिजनेस ट्रेनिंग। एंड बिजनेस ट्रेनिंग में आई हैव सीन कंपनीज दैट आर ग्रोइंग वेल, टीम्स दैट आर ग्रोइंग वेल,
उन्होंने ट्रेनिंग को उसमें भी दो अलग अलग कैटेगरीज में डाला हुआ है। मे बी वन कैटेगरी फॉर पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड, या जिन्होंने 2,000, 10,000, 5,000, 20,000 रुपए तक कमाए। और उसके बाद एक और कैटेगरी है जिसमें हमें लीडरशिप सिखाना है, और जहां पर आप सीधी रिक्रूटमेंट भी सिखा सकते हैं या कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करना सिखा सकते हैं। दैट ऑल्सो कैन बी डन। बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो मुझे बहुत सारे एमडी से और लीडर से बात करके पता चल रहा है, जिन कंपनीज के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, पेटेंटेड हैं, रिजल्ट्स कमाल के हैं, उन कंपनीज की अब स्ट्रगल ये है, लोग इतने आनंद में हैं और इतने सेटिस्फाइड और कंटेंट महसूस करते हैं उन प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग करके, कि उनको फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना भारी लगने लग जाता है। सो जहां मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूँ आजकल, मुझे पहला जो नोट दिया जाता है वो ये होता है, सर आप रिक्रूटमेंट शुरू कराओ इनसे, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन ये लोग खुश हैं माल बेच बेच के, एंड एक्चुअली दे एंड अप बिकमिंग रिटेलर्स, राइट? सो our training has to be very very clear, like हमें अपना, and one thing राहुल भाई which I have observed is, ट्रेनिंग के जो सिलेबस जैसा बोलते हैं ना, हम कहीं भी जाते हैं तो उसका एक कुरिकुलम होता है। हमारे यहाँ पे वो कुरिकुलम ना मिक्स हो जा रहा है। एक ही ट्रेनिंग में जैसे प्रोडक्ट भी आ जाता है, कंपनी का फेथ भी आ जाता है, इंडस्ट्री पे फेथ आ जाता है, फिर उसमें लीडरशिप भी आ जाती है, फिर उसमें सेलिंग भी आ जाती है। तो हमें थोड़ा अलग अलग करके करेंगे ना, तो ये सारी ट्रेनिंग इफेक्टिव रहेंगी, रिजल्ट निकालेंगे। I think my question जो है ना, we'll have to come back to the question. So या what we guys can probably do is, so we have a market which is customer है, हमारी market है, direct selling leaders हैं, हमारे जो company owners हैं, हमारे जो direct seller हैं, which is the main audience जिसके हिसाब से आप content बनाते हैं। तो probably you can guys can put it in the chat if you're comfortable, or we can all discuss what is the चारों perspective में, so what is the first reaction of making a content, कि इन चारों में से पहला कंटेंट सबसे बड़ा हमें किसके लिए बनाना है? कंज्यूमर, डायरेक्ट सेलर, लीडर, कंपनी ओनर, किसके पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा कंटेंट बनता है? सर मैं सो मैं बात करूं 2 मिनट के लिए? पहले चैट पे लिख दो क्योंकि मैं ओके। okay, so we're looking at leaders is one, so we're looking at consumers, so okay, leader, direct seller, and are we looking at any other more जिनके हिसाब से हम कंटेंट बनाते हैं? The biggest content that goes in the market, जो सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर जगह अवेलेबल है, हर जगह ट्रेनिंग बनती है, तो कौन है वो? सो इकराम भाई, शताब्दी, Somnath ji, okay, so everybody's written this. Okay, what are we missing is the content for MDs. That's for true direct sellers. Okay, thank you so much. Okay, now the question why we are saying is क्योंकि once we're looking at a social media content, या हम बहुत सारा ज्ञान देख रहे हैं कि सब कुछ फ्री अवेलेबल है। It is true that आज की डेट में ज्ञान excessive है. It's flowing everywhere. What you pick out is the key now. So my question is, let me show you a figure of this thing. ये क्या है image? एलियन। Alien. Okay, so this is an alien. We recognize this alien very quickly, जबकि हम में से किसी ने इसको देखा नहीं हुआ, right? ये किसकी इमेज हो सकती है? रियल एस्टेट इंसान। सेल। और let's look at our industry, probably a direct seller, consumer, leader, company owner. So anybody from, let's say, direct seller या leader, right? If we have to talk about our industry, very similarly, if you talk about. So the question here is, ये हमने कभी देखा नहीं, ये हमने पहचान लिया, ये हम रोज मिलते हैं, इसको जानते हैं, इसको देखते हैं, और इसके लिए सबसे ज्यादा कंटेंट बनाते हैं। ऑल ऑफ अस एग्री, राइट? या सो द माय क्वेश्चन इज, हाउ डू वी फील या री एनफोर्स कि डायरेक्ट सेलर एक रिकग्नाइज पर्सन है? सरकार के लिए ये तो रिकग्नाइज नहीं है एलियन, ऑल ऑफ अस नो दैट भाई, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एलियन, राइट? यू नो दैट कि गवर्नमेंट डजंट रिकग्नाइज एलियंस। डू गवर्नमेंट रिकग्नाइज डायरेक्ट सेलर? कैन आई गो टू अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड से दैट आई एम अ डायरेक्ट सेलर और वो मेरे को चाय पिलाएंगे? आप में से केरला जो में भी हो लिख, सकता है। It depends, हाँ sir. जी, It depends. नहीं, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट। If you come with a Mercedes, if you come on a Mercedes, maybe, maybe it depends, sir. Even if a insurance agent will go to a government No, department no, and no. Very, very says like, specific. Shiv, let's look at very, very specific question. Is direct seller a recognized person in India? yes, एलियन हम सबने आइडेंटिफाई कर दिया था, डायरेक्ट सेलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सरकार आइडेंटिफाई There is करेगी? a mixed kind of a feeling in the market right now. Just if I see 10 years back what the situation was, डायरेक्ट सेलर का ये वर्ड ही मतलब एग्जिस्टेंस में नहीं दिखता था, बट नाउ आफ्टर सो मेनी थिंग्स गेटिंग इनटू प्लेस ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लॉज वगैरह वगैरह, एंड अब हाँ, डायरेक्ट सेलर एज अ वर्ड अभी तक रीइंफोर्स नहीं हुआ है, इट्स नॉट गेटिंग रिकॉग्नाइज, बट मल्टी लेवल मार्केटिंग, इज इट लीडर, रिकग्नाइज? नेटवर्क आपकी नजर में मार्केटियर। रिकग्नाइज है? हाँ, कैसे? that's what I'm trying to add in कि not by the term direct seller itself, but network marketeer or MLM leader or leader, associate, these are the words which तो are more prominently used तो in सरकार place of a रिकग्नाइज direct करती seller. है जो आपने शब्द बोले हैं? हम में से कितने लोग एग्री करते हैं कि सरकार इस शब्दों को एग्री करती है जो अभी सर ने बोले हैं? सर जो डायरेक्ट सेलिंग लॉ में है ना, डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी बोल के डिक्लेयर किया है, सिर्फ
उसी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो जो लॉ में नेटवर्कर बोल के भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, एमएलएम लीडर बोल के भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, नेटवर्क मार्केटर बोल के भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। Exactly. शरद, आपने ना बिल्कुल सही बात की। तो ना द क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। आई टेल यू द कोर प्रॉब्लम दैट इज कमिंग। जब हमने फीडबैक लिया व्हेन वी क्रिएट दिस डायरेक्ट सेलिंग इनसाइट रिपोर्ट, द प्रॉब्लम इज दैट वी एज अ ट्रेनर डोंट रिकॉग्नाइज कि डायरेक्ट सेलर जो है एक रिकॉग्नाइज आदमी है, या क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते एक्चुअल में, क्योंकि हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। मतलब बिगेस्ट स्टेटमेंट इज दैट एक्चुअली में क्योंकि डायरेक्ट सेलर था इसलिए पूरा डायरेक्ट सेलिंग लॉ बना है। द इंटायर पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ इज ओनली फॉर डायरेक्ट सेलर्स, क्योंकि देखो कंपनी ओनर के लिए तो कंपनी लॉ वैसे ही था, रिटेलर के लिए कंज्यूमर के लिए वैसे ही रिटेल लॉ था, डायरेक्ट सेलर को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती थी इसलिए लॉ बना था। नो, तो क्वेश्चन इज, अगर हम जिनको सबसे ज्यादा कंटेंट बनाते हैं, जितना हम ये कंटेंट मार्केट में डालते हैं, डू यू थिंक एनीवन टॉक्स अबाउट दिस थिंग? अगर ये बात नहीं करते तो क्या डायरेक्ट सेलर को ये नहीं लगता कि उसको हम ठीक बात नहीं कर रहे? एंड व्हाई डू वी अवॉइड दिस थिंग? दैट इज द होल क्वेश्चन कम्स नाउ। डू यू थिंक दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मार्केट में नेगेटिविटी या मिसकंसेप्शन है? कि अगर मुझे लगता है कि मैं अगर ये हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं एमएलएम बोलूंगा, नेटवर्क मार्केटर बोलूंगा, एफिलिएट मार्केटर बोलूंगा, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बोलूंगा, हेल्थ एंटरप्रेन्योर बोलूंगा, बट विल नॉट टॉक अबाउट द करेक्ट थिंग। So what is your take on it? Should we not reinforce this part very very strongly in our training program? कि यार सरकार आपको रिकॉग्नाइज करती है, आप किसी पुलिस स्टेशन जाते हैं, गवर्नमेंट में जाते हैं, आप सरकार को कहते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलर हूं, एक्चुअल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, हम उसको कितना रिकॉग्नाइज करते हैं, ये क्वेश्चन है। सो डू वी हैव एनी ओपिनियन ऑन दिस, अगेंस्ट, और आर वी ओके विद द आइडिया? It is absolutely right. See, companies are promoting the term as direct seller only. What I just added was these are certain things which the market is understanding, which the company is not reinforcing, but the market is comprehending in that manner. So that is something which is beyond our span of control as of now. But these things, all the guidelines and laws being there in place, I think this direct selling or a direct seller word will be a very much more recognized word in the times to come, and it is already a transformational stage. I don't think so this is a accepted answer, bro. I think we should all call it कि if 2021 के बाद this is there, it has taken us 3 years to accept this, विच मीन 3 साल से जो कंटेंट मार्केट में अवेलेबल था वो एक्चुअली ठीक नहीं था। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, अगर मैं किसी डायरेक्ट सेलर को, या इसको लेट्स ब्रेक इट डाउन ऑन अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। आपसे कोई मिलता है, सर मेरा 18 साल का बच्चा है या मेरी 18 साल की लड़की है, वो कॉलेज जाना चाहती है, उसके बजाय वो डायरेक्ट सेलिंग करना चाहती है, तो क्या ये चीज उसको मैं करवाऊं? तो इसका आंसर हम कैसे देते होंगे? आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी पिवट थिंग दैट कम अप इन द लास्ट 1 year when we realize कि why this misconception is happening, because everybody thinks कि यार मैं genuine नहीं हूँ। Now the next question which follows up is, we have Bhupinder ji who has joined us. Hi Bhupinder ji. नमस्ते राहुल जी। How are Hi you? everyone. We have already started the discussions and all, so I'll just address this question and then probably come back to you. And so दोस्तों, 18 से 25 साल के लोग डायरेक्ट सेलिंग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? व्हाट इज योर परसेप्शन एज अ ट्रेनर? शिव भाई, लेट्स स्टार्ट विद यू। राइट, बिल्कुल देख रहे हैं। बट इफ यू आस्क, लाइक इफ यू गो बैक टू योर क्वेश्चन, जो भी आपने बोला कि मैं 18 साल के बच्चे से ये पूछूंगा कि कॉलेज जाओगे या डायरेक्ट सेलिंग करोगे, तो ऑब्वियसली आई विल आस्क कि हाँ कॉलेज भी करो। कॉलेज तो लाइक दैट इज पार्ट ऑफ योर मेन स्ट्रीम एजुकेशन, उसको तो करो ही करो। डायरेक्ट सेलिंग आप जरूर करो। मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि मैंने डायरेक्ट सेलिंग करी है। मेरे को जितना एक्सपोजर, जितना एडुकेशन, जितना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इस फील्ड से मिला है। शिव, वी नीड टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट। 18 से 25 साल के पास और भी ऑप्शन है। डू यू थिंक दे विल कंपेयर ऑप्शन टू ऑप्शन? इज डायरेक्ट सेलिंग अ वेरी वैलिड ऑप्शन राइट नाउ? Obviously they will compare, and I'm not suggesting कि everyone will do. Everyone won't be like a YouTuber, everyone won't be a direct seller, everyone won't be a chartered accountant. Yes, but it is an option to think about it, and why they सोमनाथ will जी, not. ओ सॉरी, विनय पाटिल जी। विनय, आप एक्चुअली बच्चों को कॉलेज में सेशन लेते हो, एंड यू हैव वन ऑफ द मेजर थिंग दैट यू डू इज टेलिंग young kids about entrepreneurship, and I see you also handle lot of people जिनके लाइफ में डिसेबिलिटी है या स्पेशली चैलेंज पीपल हैं। You tell them how to look at option. Do you think the young people will look at direct selling the way we had looked at 20 years back? या do you think too many options coming in and direct selling उनके ideas में fit नहीं बैठ रहा? Absolutely. Let me open the Pandora's box. The truth is, they are not seeing it because They're not a seeing it. Okay. lot many options, and I'll tell you how this works. See, the way the stock trading has taken the market. Like people are seeing it as, see, it's not like whether I'll earn or not. मुझे उसमें भाग लेना है बस, right? So there was a time when we were in direct selling in college. That kind of trend, definitely, if you ask me, it has kind of shifted because of umpteen number of options.
It's not like, see, that is where I'll just go back to the first question. Is that okay, Rahulji? Can I take 2 minutes here? Four Because minutes, that's it. I'll tell you. Yes, 2 minutes only. Now I'll tell you. See, I heard all the panelists here. I respect their opinions, but I'll just put it here. What is the objective of training, right? See, the medium is different. Why I mentioned old schoolers, I can do a lot of online trainings. Hybrid is the way forward. I'll not deny, but that's why I said I can't negate the fundamentals, which is the physical. ओके वो ट्रैवल करके आएगा, वो ऐसे आएगा, इस पे पैसा खर्च होगा. दैट इज व्हाट आई थिंक, दैट इज वेयर पीपल स्टार्ट feeling the experiences, right? So in simple words, the objective is the cultural change. If I have to train any particular company, it is a cultural change which I need to be aiming at. See, I'm clubbing all your three questions here. You said leadership training or direct seller leaders or direct sellers or consumers. If the game is the cultural change, because any company doing well, I'll not take a name, but one company, you all know it, they have that morning meetings, the shake meetings, all that. They are able to kind of create a dent because of the cultural change, right? I'll put cultural change word there because that is the objective. If you ask me present trends, somebody said that because of COVID, people are moving online, Zoom mein hi hum meeting karte hain. Yes, that is true. People are resisting change, right? They're resisting change. However, tomorrow itself, I have an event with Nokia leadership team. Now see, they are more into technical. They are coming on physical entity. They are expecting experiential learnings. They are so much overloaded with social media because they're so much online. They're looking for something which is experience, right? That is why you see in Bangalore every weekend every resort is blocked. Every resort is blocked. Why? And resorts are coming up considering the fact that we need experiential trainings. I'm not again negating online training, which is very important for technical stuff, because teaching is an act, training is a performance. This is what I believe. So if you ask me, present young generation, yes, they are too much online. We need to take them out. For example, recently I took 2 hours training for students, first year student. Just one more minute. I took training for students. Now, do you know the professor comes and tells me, how is that you are able to hold there for two hours? We are not able to hold them for 15 minutes. See, the failure to handle Gen Z is not the Gen Z's problem. It is the problem of a trainer if I am not able to handle them. That's it. So, in simple words, if the trends are shifting, मैं मानता हूँ कि I'm a person who don't ride the waves. Yes, I do understand it is important, but it is better to create the wave. That is what is my feeling. And because if you are ready to create the wave, it is long lasting. So Rahulji, you have taken the responsibility of, I can see you are voicing direct selling very crazily, especially the previous question is so important, that direct selling getting recognized, the direct seller getting recognized. For that, we can't simply do what everybody is doing. You need to think out of the box. And in simple words, yes, Gen Z is something they're looking beyond. I know they're looking for quick money, but if direct selling can offer something beyond, then definitely, yes, they can be attracted to this. Yes, over to you. Thank you, Vinay ji. Coach BSR Saab has joined us. Bhupinder ji is a very, very senior profession in our industry and one of the very exciting life coaches that I listen to. Bhupinder ji, are you connected with us? Is the voice coming in? Yes, Rahul ji. Thank you. Okay. Thank you for inviting. How are you It's a all? pleasure. कोच साहब एक क्वेश्चन था. Do 18 से 50 साल के जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग को देखते हैं एज एन ऑप्शन? ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ. इसका रीजन क्या है कि आज की डेट में एक और इंडस्ट्री है जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है जिसको गिग इकोनॉमी कहते हैं. नाउ गिग इकोनॉमी मल्टीपल काम करते हैं, बट देयर इज अ पर्टिकुलर गिग इकोनॉमी विच इज दिस ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, वेर यू गो एंड डिलीवर, सामान डिलीवर करते हैं. नो, दैट इज ग्रोइंग लाइक क्रेजीली आज की डेट में. नाउ ये बच्चे क्या करते हैं, ये डिलीवर करते हैं, ये 90 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए के एक डिलीवरी का मिलता है, शाम को 350-400 रुपए कमाते हैं. दिस इज नॉट फॉर मनी दे आर डूइंग इट. जैसे विनय जी ने कहा, दे आर डूइंग इट टू मेक अ स्टेटमेंट कि शाम को वो एक चाय, सिगरेट या ऐसा कुछ जो भी इनके शौक है उसको पूरा किया, एंड देन दे स्पेंड टाइम, और घर वालों को लगता है कि लड़का काम कर रहा है. दैट इज वेरी वेरी गोइंग फास्ट मार्केट. Almost at about 84 lakhs, this market is growing faster than what direct selling is growing right now. To the extent कि सरकार ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने कर दिया है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट में गिवन अ प्रोविजन ऑफ 10 लाख रुपीज वर्थ ऑफ इंश्योरेंस टू देम. नाउ अगर एक बच्चा ये देखता है कि यार मैं स्विगी में माल देता हूँ तो मेरे को 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस मिलती है, जो सरकार कंट्री वो दे रही है, हमारे देश का संविधान उनको दे रहा है, और एक मैं डायरेक्ट सेलर हूँ, मुझे अभी कुछ नहीं मिल रहा, हाँ विजन में मिलेगा. इजंट इट अ कंफ्यूजन फॉर द डायरेक्ट सेलिंग यंगस्टर्स टू कम इन? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मैं बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूँ. वैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग से बहुत डायरेक्टली तो लिंक नहीं हूँ बिकॉज आई हैव नेवर डन डायरेक्ट सेलिंग. एज एन आउटसाइडर आई कैन गिव यू माई ओपिनियन. आई एम नॉट श्योर वेदर माई ओपिनियन goes well with this forum or not, but this is what I would like to say. मेरे प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आते हैं और
उनमें से आई वुड से 40% के आसपास या 30% के आसपास लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आते हैं. And I can see that many youngsters wants to get into direct selling for sure. उसके पीछे reason है कि in low cost they are able to get into the business and they are very excited. They are very very enthusiastic. So मुझे नहीं लगता कि direct selling will go down or maybe will have less kind of an impact in comparison to the other options which youngsters have. हाँ, एक चीज जरूर है जिसके कारण मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम इन द ट्रेनिंग आर नॉट एबल टू ग्रो इज बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड द टीम्स. सो मैनी ऑफ देम आर फेलिंग टू बिल्ड द टीम एंड मेरा जो स्टडी है वहाँ तक हर आदमी को बिजनेस चाहिए एंड क्विकेस्ट पॉसिबल बिजनेस इज दिस. दैट इज स्टिल अ जॉब. सो मैनी पीपल माइट अर्न लेट्स से 500 रुपीज अ डे, बट स्टिल दे डोंट लाइक टू बी कॉल्ड एज डिलीवरी बॉयज. सो ये वही वाला चीज है कि जैसे नैनो वॉज अ चीप कार बट वेरी अफोर्डेबल कार, बट when marketed as cheap car, so it was not very exciting for many people. In the same way, these Swiggy and Zomato delivery things might be exciting to few people, but जब large level पे हम audiences को देखते हैं तो it is not very prestigious for people because many people if they want to deliver food and वो ही अगर किसी relative को या किसी मिलने वाले के घर पे चला जाता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा offensive सा लगता है. So I feel many people want to get into business and direct selling is one of the options for them and they are really really choosing it क्योंकि 30% मैं जब डायरेक्ट सेलर नहीं हूँ फिर भी मेरे प्रोग्राम में अगर 30% लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आ रहे हैं, इट मीन्स लॉट ऑफ पीपल आर कंसिडरिंग डायरेक्ट सेलिंग एंड दे नो दैट दे कैन ग्रो हियर. बस उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स थोड़े करेक्ट हो जाएं, उनके कुछ तरीके तौर तरीके सेलिंग के करेक्ट हो जाएं तो आई एम श्योर दे विल ग्रो. सो दिस इज व्हाट So we आई. will discuss the sales module also now. And so now when we look at the market of training these days, so we're looking at about चार तरह के trainers is what generally we feel, we get. So we get process trainer. So process trainer is about someone जिसने वो काम किया होता है और फिर उस काम को एक्सप्लेन करता है. मैंने 10 साल डायरेक्ट सेलिंग की, मैंने 10 साल के बाद डायरेक्ट सेलिंग बताना शुरू की लोगों को, तो मैं एक प्रोसेस ट्रेनर हूँ एक्चुअली में. मैंने गाड़ियां बनाता था, मैं ऑटोमोबाइल ठीक करता था, मैंने ऑटोमोबाइल की ट्रेनिंग ठीक करना शुरू की, तो मैं एक ऑटोमोबाइल ट्रेनर बन सकता हूँ. और मे बी एन आईटी ट्रेनर, मैंने डेवलपमेंट किया, कोडिंग किया, या मैंने क्यूसी क्यूए किया, so I can become an IT trainer also. Then the second part is obviously the skills trainer, where you impart certain skills. Could be a conflict management, time management, or communication skill, or probably a social media skills. These are probably the skills that you need. कि प्लान कैसे प्रेजेंट करना है या प्रोडक्ट कैसे प्रेजेंट करना है. Then you have a corporate trainer, जिन्होंने वो काम नहीं किया होता लेकिन उनको वो टास्क मिलता है. They do it very objectively. They do a need analysis. They do a objective theory, and they look at measurable output. Then these are corporate trainers. They will do it एज पर द नीड, वो काम शुरू करते हैं. देन देर आर की नोट स्पीकर्स. नाउ जनरली कॉर्पोरेट की नोट स्पीकर्स अलग होते हैं. वो 1 घंटे के लिए आते हैं, 45 मिनट्स के लिए. दे विल स्पीक अबाउट समथिंग दे लाइक, मे बी देयर ओन सक्सेस स्टोरी, मे बी देयर ओन लाइफ. जनरली की नोट स्पीकर आर पीपल जिनकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल होती है, इंस्पिरेशनल होती है लोगों के लिए. बट डायरेक्ट सेलिंग में की नोट स्पीक ऑल्सो कन्वर्ट्स इनटू एड्रेसिंग एन ऑडियंस ऑफ लेट्स से 500 पीपल. क्या जिनको मोटिवेट करना है, या ये लोगों को चार्ज करना है, या इनको लोगों को डायरेक्शन देना है. वेयर वी डोंट टेक इनपुट फ्रॉम द ऑडियंस, वी आर जस्ट गिवन वन लाइनर ब्रीफ एंड वी गो एंड Are implement. you So asking this to me? no, I Is will that be the putting question for forward this me? question for everyone. Okay, now the team, the question is, which kind of trainer has the biggest market? ठीक है. So are the process trainers the biggest one in the delivering the biggest market share, or the skills trainer, or the corporate trainers, or keynote trainers? So let's look at a very very objective discussion. So I'll start with Somnath ji. Somnath ji, what do you think? Which is the biggest market? बिफोर आई आंसर दैट, इसमें जो डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं, जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो होती है उसको हम किस हेडिंग में लेंगे यहाँ Skills, पर? skills में कहते हैं सर वो. Skills में. So in context of the direct selling industry, I would say skills is something which is of utmost importance that we are looking into. Whether it be product training, skill building, communication skills, relationship building, show the plan, follow ups, and all those are the main things.
Okay, fair enough. Shatabdi, what do you think? Which is the biggest market? सर अकॉर्डिंग टू मी स्किल फोकस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग सर, क्योंकि अभी का पहले के समय में हम लोग को मोटिवेशनल ट्रेनिंग ज्यादा पसंद था, पर आज के दिन में लोग ज्यादा क्लोजिंग टेक्निक, सोशली लीड किस तरह से जनरेशन करेंगे या प्रोडक्ट को किस तरह से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, ज्यादातर लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं. सो आई बिलीव इन स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स. इकराम भाई, व्हाई पीपल आर जस्ट टर्निंग अगेंस्ट मोटिवेशनल ट्रेनिंग? मुझे तो बहुत पसंद है एक्चुअली। अगर कोई मुझे बुलाता है कि ये मोटिवेशनल ट्रेनर है, उसका सेशन सुनने का है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई लाइफ में इंस्पायर कर रहा है। बट जनरली आई फील दैट मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स जब आप मार्केट में मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार ये सिर्फ मोटिवेशन देता है, ये कुछ सिखाता नहीं है। बट व्हाई इज इट सो? आई मीन, मोटिवेशन करना सबसे बड़ा, मतलब आई वुड से बिगेस्ट स्किल इन द वर्ल्ड है एक्चुअली। तो व्हाट इज योर कॉल ऑन दिस? राहुल भाई, विच इज द फ्रैंकली बिगेस्ट? स्पीकिंग, आज के दिन में ट्रेनिंग भी काफ़ी चेंज हुआ लास्ट 25 ईयर्स में। तो अगर आप देखेंगे, मैं एक दिन शिव सर से बात कर रहा था, काफ़ी लंबी मेरी बात हुई थी। हम लोग कभी भी हाउ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कैसे, ठीक है ना, कैसे करना है, इस पर कोई भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अभी कल हमारे कुछ पैनलिस्ट ने बताया कि ट्रेनिंग को भी कैटेगराइज करना पड़ेगा सर, ठीक है। जैसे बहुत सारी कंपनी में जो मैंने एनालिसिस किया है कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग होती है, लेकिन अगर क्या आज एक नए बंदे को लीडर बनाना है, उसके लिए कौन सी ट्रेनिंग है, या उसके बिजनेस। Ikram bhai, let's come to the question. So, which you think is the biggest market? Process, scales, corporate, or keynote? सर मुझे तो इन बेसिकली तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। जब तक आप एक लीडर के एनालिसिस करके उसके हिसाब से ट्रेन, अभी क्या होता है सर, हम लीडर को जानते नहीं है, लेकिन जाके 3 घंटा उसके लिए बोल देते हैं। क्या वो चीज उसको बिजनेस को, अगेन टर्नओवर टर्नओवर टर्नओवर, कोई भी चीज हम लोग जितने भी डायरेक्ट सेलर्स या डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, काम एक्शन वो करो जिससे कि उसका टर्नओवर बढ़ना चाहिए। तो कई जगह आप राहुल सर देखेंगे कि हम जाते हैं, बोल के चले आते हैं कि उसका बिजनेस में इंपैक्ट हो रहा है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। शरद भाई, आपको क्या लगता है? आई मीन, इफ आई एम अ प्रोसेस ट्रेनर, डू आई हैव अ फीचर? क्योंकि जनरली मैंने एमएलएम किया है, मैं एमएलएम का ट्रेनर अच्छा बन सकता हूँ। दैट इज प्रोसेस ट्रेनिंग, वेरी सिंपल फॉरवर्ड। और आई कैन बी मल्टी फैसेट ट्रेनर और कॉर्पोरेट ट्रेनर, एंड आई कैन डू एमएलएम ट्रेनिंग ऑल्सो। बट व्हाट इज द बिगेस्ट मार्केट यू थिंक? क्या लगता है आपको? सर मेरे ख्याल से बिगेस्ट मार्केट उनके उनके हिसाब से होता है कि जैसे कि अभी डायरेक्ट सेलर को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिगेस्ट मार्केट हो सकता है। सो स्किल डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब भी अ, अभी बच्चों लोगों को भी बहुत जरूरत है, जैसे कि कॉलेज लोगों को। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक मार्केट हो सकता है। द रीजन वाई आई एम सेइंग दिस इज क्योंकि देखो, एक ना बड़ा फीडबैक आता है मार्केट से कि सर, ट्रेनिंग का ना रिजल्ट क्या है, ये मेजरेबल नहीं होता। एंड वो ट्रेनिंग का मेजरेबल रिजल्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे पास मेजर लेने के, इनपुट लेने के पैरामीटर्स ही नहीं है। सो जनरली जब हम ये बात किसी के साथ करते हैं, तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव इज। तो हम कई बार लोगों से कहते हैं कि सर, आपने जब बुलाया एक कीनोट स्पीकर को है जिसने 500 लोगों को एड्रेस करना है, आप उस ट्रेनिंग का मेजरेबल कैसे कर सकते हैं? सी, वो दैट इज अ डिलीवरेंस है। यू कैन ओनली मेजर समथिंग जो एक प्रोसेस स्पेसिफिक होगा कि हाँ जी, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का प्रोसेस है, तो तब आप मेजर कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दैट फैक्ट। लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ, जब हम ट्रेनिंग को हायर करते हैं, जब हम ट्रेनिंग L&D के वीपी को हायर करते हैं, और भी हायर समबडी फ्रॉम आउटसाइड, और वी लुकिंग एट अ मोटिवेशनल ट्रेनर, या दीपक भाई के पास जाते हैं कि दीपक भाई बिजनेस नहीं आ रहा है। So let's look at what are the three major solution companies are looking from. Deepak bhai, what do you think? Deepak bhai, are you still with us? I believe you had a call at 12 o'clock. No, sir, he already left. Okay, I think yes, he has already told me that he had a call from this thing. So Somnath ji, we'll start from you. Three major things that we need to look at. Well, Why companies? yeah, see, what I just shared in the very beginning also, that companies right now are looking into a blended sort of learning, not only focusing on online, but also classroom trainings and as well as e-learning models as well. So I would say these are the three major solutions that the companies are looking for, because e-learning, because being the standalone platform, आप जाओ वहाँ पे at your own convenience, you can go there, get your trainings, get your certifications or whatever is there. So it's completely gamified of a learning. वहाँ पे एक बड़ा enthusiasm बना रहता है training को लेकर regular. That is one. Second is the Zoom, the Microsoft Teams and the Google Meet वाली trainings, जहाँ पर you get connected to the large audience and everything. Then third is of course our all-time favorite, which is the classroom trainings. So these are the three aspects that we are looking at from the company point of view. However, another very big point, that e-learning, as I rightly shared in the very beginning also, बहुत सबकी expectations थी post COVID की e-learning will be the next blockbuster thing, but वो
नहीं हो पाया. द कन्वर्जन इज अ वेरी स्मॉल ऑफ अ परसेंटेज. आई थिंक below 10% is the conversion in everywhere where I have seen that, right? And Zoom is widely accepted that way. शिव भाई, कंपनी तीन मेजर प्रॉब्लम जो आप कंपनी की सॉल्व करते हो, शिव जी। म्यूट में हो शिव जी, म्यूट में. ओके फाइन. am I audible? या कंपनी की मेजर प्रॉब्लम अगर है तो वो पीपल प्रॉब्लम है, राइट? और अगर हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो किस पर्सपेक्टिव से सॉल्व करने जा रहे हैं? एक्चुअली अभी तक क्वेश्चन मेरे पास आया नहीं, तो आई विल स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द ट्रेंड्स. नाउ इफ यू अलाउ मी 3 minutes, I टू want. 2 minutes, शिव, we'll have to Okay, move fast. okay, okay, Okay. okay, okay, fine. सो इफ यू टॉकिंग अबाउट ट्रेंड, आई वुड गो फॉर कि हमारे को आज इंडस्ट्री में 30% ऑफलाइन की जरूरत है और 70% ऑनलाइन की जरूरत है. बिकॉज जब एक इंसान, एक कंपनी एक ट्रेनर को बुलाती है, वो उसको डिलीवर करने बोलती है 3 घंटे 5 घंटे, 3 घंटे 5 घंटे के अंदर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं सकता है, वो फिजिकल ट्रेनिंग भी हो. बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू टेक वर्कशॉप फॉर 2 days और ऑन आर ओन टर्म्स एंड कंडीशन. हमको सिर्फ दे दिया जाता है कि ये कंपनी की प्रॉब्लम है, फुल डे का सेशन है, आप इसको सॉल्व करो. सो व्हेन यू ब्लेंड इट विद दैट ऑनलाइन, सपोज मैं 3 घंटे में अपना आर्ट ऑफ सेलिंग का प्रोग्राम करता हूं, बट वही प्रोग्राम जब मैं फॉलो अप में 3 दिन करता हूं, 2-2 घंटे ऑनलाइन, तो कंपनीज हैव अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो हमको जो एक सिस्टम बिल्ड करना है वो एक कॉम्बिनेशन में बिल्ड करना होगा, जिसमें जो जैसा कि विनय जी कह रहे हैं, ही इज एब्सोल्युटली राइट, कि हमको वो जो ट्रांसफॉर्मेशन, टच, फील, एक्सपीरियंस, फिजिकल वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन के थ्रू आ सकता है, वो ऑनलाइन में कभी नहीं आ सकता है. सो व्हाट आई डू, अगर मैं एज अ ट्रेनर यहाँ पे दूसरे ट्रेनर को अगर कुछ अपने मतलब एक्सपीरियंस से बताऊं, तो व्हाट आई डू इज कि मैं अगर एक ट्रेनिंग ऑनलाइन करने जा रहा हूं, दैट इज हैविंग अ गुड इम्पैक्ट आफ्टर 3 hours, की यार शिव, यू आर अ गुड स्किल ट्रेनर, तुम बोल अच्छा सकते हो, तुम इंस्पायर अच्छा कर सकते हो, तुम्हारा कंटेंट प्रैक्टिकल है, मतलब इट कैन बी फॉलोड, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एंड रिजल्ट्स कैन बी सीन. लेकिन इतना जल्दी लोगों के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ सकता है? 3 घंटे का कंटेंट दिया और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे? दैट इज इम्पॉसिबल. अब वहां पर हैंड होल्डिंग चाहिए, अब वहां पे कंसल्टेशन चाहिए, अब वहां पे मेंटरिंग चाहिए, जिसका आज का हमको फायदा उठाना चाहिए, विच इज ऑनलाइन. और अगर हम इसको लाइक ब्लेंड नहीं करेंगे, कमिंग ऑन टू योर सेकंड थिंग, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, कुछ मिस हो सकता है. शिव, प्रोसेस ट्रेनर की बात क्वेश्चन हो रही है. जस्ट शिव गिव द मी वन क्वेश्चन मिनट, इज जस्ट गिव मी वन क्वेश्चन मिनट, इज जस्ट. शिव, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, कंपनीज की प्रॉब्लम क्या है, एंड से प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे लुकिंग एट. जब वो बाहर किसी कंपनीज ट्रेनर कम से बात करते हैं, किसी ट्रेनिंग फर्म से बात करते हैं, या किसी एक्सटर्नल ट्रेनर से बात करते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे हैव, यू नो, द थ्री बिगेस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट वी लुकिंग एट. लोग So बात नहीं one is you're सुनते. saying कि they want people to get transformed. That is one problem that they have. मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ, बिकॉज दिस इज व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई हैव डेवलप्ड माय करिकुलम, माय सिलेबस फॉर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज. कंपनीज बोलती हैं कि आप एक ट्रेनिंग से सब कुछ बदल कैसे दोगे? लाइक Hmm. व्हेन वी टॉक ना, आप ट्रेनिंग दोगे, सब कुछ बदल कैसे जाएगा? सो वन ट्रेनिंग कैन नॉट चेंज द होल सिस्टम. एक्चुअली उनको ये नहीं पता है कि अगर उनके 5,000 या 10,000 लोगों की टीम है, वो 5,000 10,000 लोग स्टैंड कहाँ कर रहे हैं. द कंपनीज इवन डू नॉट नो वो स्टैंड कहाँ कर रहे हैं. सी, आई हैव डेवलप्ड अ 5 level लीडरशिप लाइक ग्रोथ स्ट्रेटेजी. आपके लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? कितने लोग? थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर इन लेवल 1, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर इन लेवल 3, thousands of people, they do know the product, they know the plan, but they don't have the skill to deliver that. उनका कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, उनका पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम है. सो Okay. करिकुलम So three वाइज, problem is नहीं, one वन is प्रॉब्लम इज लीड कंपनीज इवन डू नॉट नो वेयर देयर लीडर स्टैंड. दे okay. So एक्चुअली the दिस problem प्रॉब्लम दे that डू is नॉट one. शेयर. Second, हाँ. agreed. Second, सेकंड, दे वांट, अगर अगर ट्रेनर की बात की जाए तो दे वांट ट्रेनर टू शोकेस. कई बार उनको ट्रेनर है ना सिर्फ शोकेस के लिए चाहिए, कि अच्छा ये मार्केट में ये ट्रेनर हर कंपनी में दिख रहा है, तो अच्छा है, नहीं है, आ जाओ, दे okay, दो. fair enough. So Shiv, on this regard, we'll take an hold. शरद भाई, आपसे अगर कंपनी वाले बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और तो तीन मेजर प्रॉब्लम्स क्या एड्रेस करते हैं, वो आपसे क्या डिस्कस करते हैं? सर देखो, अभी एक कंपनी में तीन मेजर प्रॉब्लम आता है कि जो डायरेक्ट सेलर्स है उनका माइंडसेट को ठीक करना, जो उनको डायरेक्ट सेलिंग के या बिजनेस माइंडसेट को लेके आना. दूसरा, कंपनी का
इन एंड आउट उनको पता चलना चाहिए, जैसे कि कंपनी में क्या प्रोडक्ट है, क्या बिजनेस प्लान है, डायरेक्टर कौन है, कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। सो इट विल कम इन अ सेकंड फ्रेम, एंड द थर्ड फ्रेम गोज टू द इंडस्ट्री। सो बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्री का ज्ञान नहीं है, सो इंडस्ट्री का मतलब ही जानते नहीं है। और मैं ये खुल्लम खुल्ला भी कह सकता हूँ कि 99% ऑफ द डायरेक्ट सेलर्स डोंट नो व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। उनको 10 रूल्स भी पता नहीं है, मेजर 10 रूल्स। सो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को मेंटली फिजिकली फिट करना चाहिए उनका डिस्ट्रीब्यूटर को, और डायरेक्ट सेलिंग का कंपनी के बारे में A to Z जानना चाहिए। और थर्ड पॉइंट आएगा इंडस्ट्री का बारे में, इंडस्ट्री A to Z उनको जानना चाहिए। ये तीन मेजर स्टेप्स एक हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कंप्लीट किया ना, तो उनका हार कभी भी नहीं हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। थैंक यू। Raghunandan ji has joined us. Raghunandan ji has been an ex GM for multiple companies and he has headed various organizations. And he comes from a corporate side looking at the training program and the business side. और आज का जो ग्रुप है काफी मल्टी फैसेट ग्रुप है, सो वी विल टेक ओपिनियन फ्रॉम रघुनंदन जी एज द कॉर्पोरेट साइड। रघुनंदन जी, आप जब किसी ट्रेनर को हायर करते हैं या किसी ट्रेनिंग फर्म को हायर करते हैं, एनरोल करते हैं, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आप हायर करते हैं, क्या चलता है आपके दिमाग में बिफोर यू हायर समवन? Good afternoon, everybody, and thank you, Rahul sir, for giving me this opportunity. As a management, when we hire trainer, we look for certain things like how our leadership will grow. The first thing, and the second thing, we look that why conversion is so poor at certain levels. You see that conversion rate is very low. So, like Shiv Arora sir has pointed out very nicely that many companies are not aware that what are the problem a leader is actually facing. Lack of communication. Sometimes they are so reluctant to train people, and also understanding the training need is also a big gap. सबको एक भेड़ बकरी की तरह सबको आज मुझे बिठा देना है, आज मेरा एजेंडा ये है, आज मुझे ये बक के आ जाना है, ये करते हैं मोस्टली लोग। अब उसमें कोई बहुत पढ़ा लिखा भी बैठा है, उसमें बिल्कुल एक न्यूकमर भी बैठा है, आज मेरे को बस ये बोल के आ जाना है। और मोस्टली आज लीडर कर क्या रहे हैं, दे शेयर अबाउट देयर जर्नी, मैं यहां से यहां पहुंच गया। ये मोस्टली मेरे ख्याल से 90% ऑफ लीडर्स आर डूइंग दिस थिंग ओनली इन ट्रेनिंग्स। उसमें 4 शेयरिंग होगी, 5 शेयरिंग होगी, बस रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फिनिश। देन अदर चैलेंजेस आर ऑल्सो देयर, लाइक प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है किसी को, प्रोडक्ट की नॉलेज कैसे लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कंपनी तो देती है नॉलेज, लेकिन लोगों को पता नहीं। लोग बस आज ये बोलते हैं कि मेरा एलोवेरा उससे 50 गुना बेहतर है, देर इज नो डेटा सपोर्टिंग इट। लेकिन वो एक लीडर ने बोल दिया 50 गुना बेहतर है, तो वो एलोवेरा आगे जाते जाते वो 150 गुना बेहतर हो जाएगा नीचे डाउन द लाइन। तो देर इज ए बिग मिसिंग गैप। जो कंपनी बोलती है वो नीचे के लेवल तक अगर देखोगे ना आप, 150 लेवल डाउन, तो वो कुछ भी वो मैसेज क्लियर नहीं होता। तो तो जो तीन रीजन ऐसे हम आपने बोले, फर्स्ट इज दी नीड एनालिसिस की रिक्रूटमेंट या रीपर्चेस का बैलेंस हो सके। सेकंड इज लीडरशिप कैन ग्रो इंटरनली, उनके अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप कर सकें। एंड थर्ड इज द कम्युनिकेशन, अगर मैं इसको समराइज करूं कि राइट कम्युनिकेशन फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम शुड रिमेन द सेम। ओके, राइट थैंक यू। On this note, we'll move on to the next question. Rahul ji, sorry, Ji, can I quickly add 3 points here from my end? yes, sir. Yeah, because with the companies I'm working with, as you mentioned, I'm working on one is process because they need to have that clear cut processes without any leakages. One. Second thing is definitely with respect to skills. Third is leadership mentoring also. They expect us some sort of leadership mentoring for their mid-level leaders at the same time, even the management. So these are the 3 areas usually I address. Thank Sound you. good. Sound good. Thank you, Vinay ji. Thank you. शताब्दी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई डोंट नो वेदर आपने ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया भी होगा कि नहीं किया होगा। जी जनरली जिस बॉस को हम रिपोर्ट करते हैं वो कई बार डायरेक्ट सेलिंग बैकग्राउंड से होता है और कई बार नहीं होता। जी अब जब वो डायरेक्ट सेलिंग बैकग्राउंड से होता है तो उसको पता होता है, जब आप कहती हो यार कि मैं 2 लोगों को प्लान दिखाने के लिए 4 घंटे लगा कर आई हूँ, हम्म और जब नॉन डायरेक्ट सेलिंग बैकग्राउंड का होगा वो कहेगा 2 लोगों पे 4 घंटे लगाए, यानी प्रोडक्टिविटी तो 10 मिनट की भी नहीं रही। तो एज अ ट्रेनर, हाउ इजी और टफ इज टू वर्क विथ मैनेजमेंट, वन कि जिनको डायरेक्ट सेलिंग आता हो या जिनको डायरेक्ट सेलिंग नहीं आता,
तो व्हाट डू यू थिंक इज द बैलेंसिंग एक्ट दैट यू डू? सर, अकॉर्डिंग टू मी सर, मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग मैनेजमेंट के साथ काम करना ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि उनको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो अगर हम लोग वहां पे 2 घंटे या 4 घंटे का स्पेंड करके आ रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं, तो वो हम लोग को इन डिटेल में और भी बहुत सारे इनपुट्स पूछेंगे और वो क्वेश्चंस भी रहेंगे। और वहीं पे अगर नॉन डायरेक्ट सेलिंग मैनेजमेंट रहेगा, तो उनको लगता है कि 4 घंटा एक व्यक्ति के साथ बिठा के आना, इट्स अ टोटली अ टाइम वेस्ट इज ऑल्सो द। मैं जिस कारण से वहां पे गई थी, शायद उस तरह से उसमें आउटपुट आए कि आएगा भी नहीं आएगा, वो भी उनके दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है सर। सो इट्स बेटर टू वर्क विद द डायरेक्ट सेलिंग मैनेजमेंट सर, रादर देन नॉन डायरेक्ट सेलिंग मैनेजमेंट। Somnath ji, what is your call on this? Well, I'm very excited to answer this question because I have had the privilege of working with a non-direct selling management as well as In with fact, direct selling in management fact, too. Somnath ji, So, just to give yeah, you to sorry. start you the time to start the question, मुझे लगा शताब्दी एक्चुअली क्वेश्चन कम दे रही थी और हंस ज्यादा रही थी, तो उसकी खुशी रुक नहीं रही थी इस आंसर को देने के बाद। तो वही स्माइल मैं एक्चुअली आपके चेहरे पे भी देख रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं था इतना इंपॉर्टेंट है। प्लीज नाउ यू कैन गो Yeah, अहेड। yeah, because what I have understood from that experience of mine is कि direct selling is something. It is not. It is, I would say, a way beyond business. This is something where training is something beyond products, beyond skills. It is more of a connect that you can actually maintain. And जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नहीं है, he or she will never be able to understand why that connect is required. राइट सो आई एम कंप्लीटली इन एग्रीमेंट कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की किसी भी कंपनी का, अगर टॉप मैनेजमेंट की मैं बात करूं या मिडिल लेवल मैनेजमेंट की मैं बात करूं, देयर इट हैज टू बी अ कंप्लीट लाइक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस गाय should head that particular wing, otherwise it will be a complete disaster. However, ओके। at the ground level, जहाँ पे हमारे एकदम cluster trainers and city wise or state wise trainers that we have, there we can afford to invest into someone who is from a non-direct selling background and slowly and suddenly gradually, like I came from a pharma background like 15 18 years back. I came from a pharmaceutical background, and then I got my religion got changed into direct selling, and then now I speak the terms of direct selling. सो वहां से स्टार्ट करना इजी था, लेकिन द पोजीशन दैट आई एम हेडिंग राइट नाउ, अगर आज आप मुझे कहोगे कि यार फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से आप आके इस कंपनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाओ एंड यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ द ट्रेनिंग फंक्शन, करने को तो मैं कर लूंगा, लेकिन नन ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग माई इंटरनल स्टाफ एज वेल एज माई एक्सटर्नल स्टाफ, none of them would be happy and contented. That is what I Sound feel. good. Ikram Bhai also comes from corporate experience. Ikram Bhai was in Amway actually, and then couple of big corporates. इकराम भाई, कैसा एक्सपीरियंस है नॉन डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग मैनेजमेंट के साथ काम करने का? राहुल सर, बिल्कुल मेरा तो दोनों एक्सपीरियंस रहा है। मैंने तो दोनों तरह के मैनेजमेंट के साथ काम किया है। मैं वही सोच रहा था कि आप मेरा नाम नहीं ले रहे, और मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँगा। तो अगर मैं डे जो है सबसे लेटेस्ट में बताऊँ, अगर मैं डे जो है की बात करूँ तो इकराम भाई, वी कैन अवॉइड द कंपनी नेम्स इफ दैट इज ओके। ओके ओके। अगर अगर मैं मान लीजिए, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो दोनों एक्सपीरियंस रहा है और दोनों में लर्निंग रही है। ठीक है, दोनों में लर्निंग इसलिए रही है क्योंकि अगर आप कहीं पर एक्सपीरियंस कहीं पर होते हो और कहाँ जहाँ पे मैनेजमेंट आपका एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो थोड़ी सी दिक्कतें परेशानी होती है, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंजेस नहीं होता है। लेकिन अगर आप वही सेम नॉन डायरेक्ट सेलिंग मैनेजमेंट की अगर 1 साल बाद बात करते हो, तो वो इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये चैलेंजेस दोनों है, एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेज दोनों है सर, लेकिन काम करने में मजा दोनों के साथ आता है। Okay. Thank you so much, Ikram bhai. So we'll move on to the next topic. And Bhupinder ji, after this question, I'll come to you because this is a very, very specific question for the industry. But there is another question जो आपके लिए है इसके बाद. We'll be addressing. Very simple call. So how do we update ourselves? So the question is, trainer has to be the most educated person in the company. Why trainers are considered as God? Because they are the one जो ज्ञान बांट रहे हैं. So the question is, how do you regularly update yourself? So the interest आना जरूरी है, पैशन आना जरूरी है। शरद भाई, आप कैसे करते हैं अपने आप को अपडेट? सर ये एक मैं टोटली आई बिलोंग्स टू डायरेक्ट सेलिंग कोच हूँ। मैं दूसरा शेयर मार्केट, कारपोरेट ट्रेनिंग,
और दूसरा कुछ भी नहीं करता हूँ। मेरा जो भी जिंदगी मैं आज हूँ बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हूँ, और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ही मैं ट्रेनिंग देता हूँ, बाहर किसी को नहीं ट्रेनिंग देता हूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग में मुझे मैं अपडेट करने के लिए ये मेरा गुरु है, जैसे कि आप लोग है, पुनीत जी है और आप है, जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इन एंड आउट जानते हैं। तो मुझे शॉर्टकट है, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ तो आपको या पुनीत जी को बात कर लेता हूँ, तो वहां से मुझे कुछ अपडेट्स मिलता है। तो ये मैं यहाँ पे कन्नड़ा में लोगों को समझा सकता हूँ, और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, कंप्लेंट्स के ऊपर मैं ऐसा काम करता हूँ। दूसरा, जैसे कि केरला में एक रूल्स आया था, तो इमिडिएटली उसको प्रिंट आउट लेके मैं मेरे हिसाब से स्टडी किया, और बहुत सारे पॉइंट्स मुझे पता नहीं थे, पुनीत जी उसके बारे में समझाए। और दूसरा, एज यूजुअल, स्पिरिचुअली और मेंटली फिट रहने के लिए जो भी बेसिक चीज करना पड़ता है वो करूंगा, और किताबें लिखता रहता हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जितने भी लोग फेल हुए हैं और सक्सेस हुए हैं, उन लोगों को मिलके डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर मैं एक मूवी बना रहा हूँ, और डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, और थीसिस लिख रहा हूँ, और किताबें लिख रहा हूँ, तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ऐसे मेरे सेल्फ मैं अपडेट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। बहुत शरत, आपकी मूवी अच्छी चले एंड ये आप में एक से मूवी कोई बन अगर गई है, एक शिवम मूवी बोल बन के गई। कनाडा में डॉक्यूमेंट्री मूवी हो गई है, रिलीज भी हो गया, लास्ट ईयर रिलीज हुआ था। चलो, so okay, now I think we'll move on to the most important topic is so pros and cons of social media for a trainer. इसमें दो तीन क्वेश्चंस है। वन इज ऑब्वियसली व्हेन somebody comes to you and 18 साल का 20 साल के बच्चे आते हैं, कहते हैं कि सर हमें ट्रोल किया गया। देन somebody comes up and say कि सर मेरे को मेरी कोई फोटो डल गई और मुझे बहुत कुछ बोला गया। देन देयर इज अ डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी जिसको ये नहीं पता चलता कि क्या डालना है, डल गया। देन देयर इज अ नाउ देयर इज अ लॉ आल्सो इन प्लेस कि आप इसमें क्या कमेंट डाल सकते हैं, क्या इसमें प्रूफ डाल सकते हैं। सो भूपेंद्र जी, वुड यू बी कंफर्टेबल या इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए, अपने इनपुट देने के लिए कि हाउ डज द सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी कम फॉर अ यंगस्टर? सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, सोशल मीडिया इज अ ब्लेसिंग। अगर कोई आदमी सोशल मीडिया को यूज कर पाए अपने Sorry. प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए और अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, I think it's a very good brand building tool. But yes, 90% people do not know how to use it, क्योंकि it's a double-edged sword kind of a thing. And some people who are very wise, they know how to steal the time of people, और कैसे उनका time वो ले लें. So because of that, many people who do not have the clear path, clear vision, clear direction, वो लोग इससे हमेशा परेशान ही रहेंगे. इसके कारण they will lose their growth. So I feel ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ पैसा बढ़ता है और उसको लेना वाला चाहिए. आई थिंक ग्रोथ इज वेरी वेरी इजी दीज डेज. पहले इतना प्रिविलेज्ड कोई नहीं था कि इतने इजीली कोई भी आदमी आए, किसी भी बैकग्राउंड से आए और बहुत सफल हो जाए. uh, आज आप देखेंगे कई सारे यंगस्टर्स बहुत ज्यादा सफल हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल सोशल मीडिया. सो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट whether people have a very big vision or not, about how do they see themselves, वो कैसे अपने आप को देखते हैं, कैसे उनका खुद का सेल्फ वर्थ वो करते हैं. एंड कॉन्स तो बहुत सारे हैं, बट कॉन्स पे देखेंगे तो हर चीज़ के कॉन्स हैं, हर चीज़ के चैलेंजेस हैं. आप ओवर ट्रेनिंग भी करेंगे तो उसके भी चैलेंजेस हैं. कई लोग ऐसे आते हैं हमारे प्रोग्राम्स में जो ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग लिए जाते हैं और करते कुछ नहीं है 10-10 साल से. So I think cons are many, but I always learn to look at the brighter side of the things, क्योंकि cons तो दुनिया जैसी है वैसी है. But if people learn to look at the pros, they can really excel in their life. That's what I feel. थैंक यू भूपेंद्र जी। विनय जी, आपने एक टॉपिक में बात की कि जब आपने बच्चों का एक सेशन लिया और उसमें 2 घंटे आपके कॉलेज के बच्चों का देयर वाज अ रैप्ट अटेंशन एंड द प्रिंसिपल केम अप और द प्रोफेसर केम अप, उसने कहा कि आप 2 कंट्रोल कर रहे थे। हाउ मच ऑफ सोशल मीडिया इज इम्पैक्टिंग द यंग जनरेशन नाउ? हाउ डू यू हैंडल दिस? हाउ डू यू टेल योर 17-year-old or 16-year-old kid? In fact, now I would say it's about 10 or 12-year-old. I think 16, 17 is also a past now. How do you handle them? How do you take this training and how do you sensitize them? Vinay ji, do we have Vinay ji with us? आई थिंक विनय जी नहीं। I think Vinay ji has to lift it. Okay. So I think we'll move on to the next question because I think we have subcut, we'll have to time, we'll have to stick to it. The more important question we'll discuss is the AI in training. So now this is an open forum जिसमें आप सब अपने अपने बात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप अपनी ट्रेनिंग्स में AI कैसे यूज कर सकते हैं. So it will be an open round where one by one we can go Can ahead I and say कि can I how pitch do in? you? Hello. Yeah, Rahul ji, can I pitch in into this? Because
Yeah. अभी So recent में what happened is right, there was one query of yours, like how do you update yourself. So AI is something which is like at the forefront, जहाँ पे हर ट्रेनर को तो सबसे पहले अपने आप को AI पे अपडेट करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है. There was a recent update जहाँ पे हमारा एक AI को हमारे मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेट करना था. And we were supposed to hire an external agency for that. Then I thought कि अब वो external agency आएगा करेगा, उसके बाद मुझे सीखना पड़ेगा. लेट मी ऑल्सो स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच. देन मैंने एआई के बारे में पढ़ना रिसर्च करना शुरू किया, एंड थैंकफुली नाउ आई हैव गॉट enough lot of expertise in that, and I have understood ki AI is a boon in the training industry. If you are not driving AI today, then AI will drive you tomorrow. It's like that. If you are driving it today, well and good. Otherwise, if you are prepared to get driven. स्पेसिफिक कैसे यूज करते हैं एआई को? AI, like right now, what I'm doing is in all the management schools also, wherever I'm going there as a guest faculty, ज्यादातर डिमांड वहाँ पे AI इन डायरेक्ट सेलिंग का ही टॉपिक मुझे मिल रहा होता है कि कैसे आप AI के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप बूस्ट करा सकते हो. सो इन द ट्रेनिंग फ्रेटर्निटी और इन ट्रेनिंग पर से इफ आई गेट इन टू लाइक, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि यू कैन एक्चुअली design a content even if you are not a content developer, right? But you still can get your content developed as per a professional. जो एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं वो पूरा एआई आपको बना के दे सकता है. अभी तक बिफोर एआई कमिंग इनटू द पिक्चर, व्हाट वाज हैपनिंग इज लोग अपने हिसाब से बस पीपीटी कुछ भी बना दे देंगे और सोचेंगे यही पीपीटी से काम चल जाएगा. एक नाउ पार्ट हो एआई इज गया गिविंग कि आप डिलीवरी जो मॉड्यूल है, सो दैट डिलीवरी मॉड्यूल का जो टाइम है वो छोटा हो गया है. सो यानी कि आप मेरे को अगर आज कंटेंट को पीपीटी में कन्वर्ट करना है तो वो टाइम छोटा हो गया एआई से. हाँ, एनी मतलब अदर जो थिंग दैट यू डू इन क्रिएशन पार्ट, एनी अदर थिंग दैट यू डू इन ट्रेनिंग? इज एआई देयर एनी इन, yeah, adoption of AI in training? AI in context of the training, how we are using it as of right now is to develop the contents and also to educate the people how to deliver anything, whether it be a training, whether it be a product presentation, whether it be a plan presentation, how you are going to deliver it. वो उनको सिखाना, that is what is currently getting incorporated into the training vertical and Okay. what we are focusing on right now. टीम, आई जस्ट ब्रेक इट डाउन. एआई के ना देखो अल्टीमेटली क्या है कि दो दो इम्पैक्ट हैं. एआई एज अ ट्रेनर आप अपने कंटेंट के लिए क्या करते हो, एआई एज अ कंपनी में क्या होगा, और एआई एज अ डायरेक्ट सेलर क्या होगा. नाउ हेयर वी विल डिस्कस कि हाउ डज योर कंपनी और यू एज अ पर्सन, और अगर आपको किसी डायरेक्ट सेलर को बताना है कि एआई का वो क्या बेनिफिट ले सकता है. So one part is obviously you can design a PPT, you can deliver a PPT. But apart from that, what does AI can do for you? So let's have call on this. Anyone who's comfortable, Ikram, Shiv Bhai, Shatabdi, Sharad Bhai, how does direct seller uses AI, and or how does company uses AI? Okay, can I come? Yes, please. I- Okay. I'll Like give you most of complete the 2 minutes now. okay, okay. Let me start my timer, right? So, like the most of the direct seller I train, they are not very much used to with this AI, or with simple I say Chat GPT. They do not know how to use that. We blend our content with the help of AI like Chat GPT. लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनको प्रॉम्प्ट कैसे देने. सो व्हेन आई एम टीचिंग देम हाउ टू गिव प्रॉम्प्ट टू चैट जीपीटी, दे आर लाइक ट्रीटिंग दिस एज लाइक अरे वाह मेरे को ये क्या मिल गया. नो, एंड दे आर एक्सप्लोरिंग. सो आई एम यूजिंग इट इन टू वे, राइट, टू एनहांस माई कॉन्टेंट. लाइक मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, उसमें मेरे को कौन सी एक्टिविटी इंगेजिंग, टास्क इंगेजिंग लाना है, दैट आई टेक द हेल्प ऑफ एआई. ये एक मैं कर रहा हूँ. दूसरा, आई एम टीचिंग एआई प्रॉम्प्ट्स टू डायरेक्ट सेलर्स, बिकॉज चैट जीपीटी को यूज करना बहुत आसान है, लेकिन इफ यू डोंट गिव द राइट प्रॉम्प्ट, नो यू डोंट गेट द राइट आउटपुट. सो आई एम यूजिंग इट इन टू वे राइट नाउ. Okay. Okay. Thank you so much. इकराम भाई, शताब्दी, आप यूज करते हैं एआई अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग? तो एक चीज हो गया कि चैट जीपीटी से कंटेंट बनाना है, वो बना लिया, पर क्या कंटेंट बनाना है वो एक ऑप्शन है. सर दैट फ्रैंकली इज एआई प्रॉम्प्ट ना, मतलब एआई आपका प्रॉम्प्ट आपने प्रॉम्प्ट बनाया, एकदम fair सही enough. होना चाहिए. So if there's बिल्कुल a जैसा prompt engineering which is at work, you यस teach them how the prompt has to work. जैसा कि शिव सर ने कहा प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर अभी तक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने
एआई बहुत ही कम यूज किया है, और कंपनी जिस तरह से यूज करती है वो बेसिकली कैप्शन वगैरह के लिए। क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने जो मॉड्यूल क्रिएट किया या पीपीटी क्रिएट की है, वो अपने एक्सपीरियंस या अपने जो भी ऑडियंस रहती है या लीडर्स होते हैं उसी के हिसाब से मैंने सारा कंटेंट बनाया। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो आपके थॉट प्रोसेस में भी नहीं होती है या बैक ऑफ द माइंड होती है, वो जब आप उसको देखते हो तो लगता है कि अरे भाई ये तो ज़बरदस्त है। और जैसे शिव सर ने कहा कि हाँ, और बहुत लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर इसको हम लोग सही तरीके से, जो वर्ड वी यूज इज लाइक अ प्रॉम्प्ट, अगर सही प्रॉम्प्ट देंगे तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट भी हमारा सही निकलेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो कि क्या प्रॉम्प्ट दिया जाए जिससे कि उनका वो जो काम है वो पूरा हो जाए। सो वी कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, बहुत सारी जगह सर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ट्रेनिंग में यूज कर सकते हैं, आपके बिजनेस डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, और हर कैटेगरी ऑफ बिजनेस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं सर। मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको। तीन जगह पे जहां पे मैंने सबसे एडवांस एआई का यूज देखा है। सबसे पहला मैंने यूज देखा कंपनी में दो जगह पे। वन इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है और सेकंड है कस्टमर सर्विस में। नाउ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एआई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है टू क्रिएट अ कस्टमाइज प्रोडक्ट एज पर द इंडिविजुअल। सो ओरिफ्लेम हैज लॉन्च्ड अ परफ्यूम व्हिच इज अ वेरी वेरी एआई बेस्ड परफ्यूम, यूजिंग दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द प्रोडक्शन साइड, व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। सेकेंड, जो एआई का इस्तेमाल हो रहा है वो कन्वर्सेशनल चैटबॉट के लिए हो रहा है, वेर यू आर रिजॉल्विंग द कस्टमर केरी क्वेरी 24/7, चाहे वो डेटाबेस या नॉन डेटाबेस की है। सेकेंड, आई थिंक जहां पे आप डायरेक्ट सेलर को गाइड कर सकते हैं, विच आई रियली लाइक्ड इट इन द कॉन्सेप्ट इन अमेरिका। आप डायरेक्ट सेलर को डालिए कि जब वो अपना प्लान पिच करता है उसमें क्या चीज वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की तरफ जा सकती है, ऐसी क्या चीज है जो वो मिस क्लेम की तरफ जा सकती है प्रोडक्ट बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपनी कंपनी का एलोवेरा प्रोडक्ट बेचना है और मैं अपनी पिच अगर मैं डालता हूँ चैट जीपीटी में, तो वो उसको अगर आप प्रॉम्प्ट इस तरह से कर दीजिए कि मैं ऐसा ना बोलूं कि वो ओवर क्लेम हो जाए, तो आपका 99% काम खत्म हो जाएगा। आज की डेट में प्रॉब्लम क्या आती है कि मार्केट में अगर मेरे प्रोडक्ट, जैसे अभी रघुनंदन पांडे जी ने कहा था कि ऊपर कंपनी क्या बोलती है और नीचे तक क्या चला जाता है। आप अपने डायरेक्ट सेलर्स को ना इस चीज के लिए ट्रेन करें कि अगर चैट जीपीटी पे जाना ही है ना, तो सबसे पहले अपनी सेल्स पिच डाल ले। उस सेल्स पिच में चेक कर ले कि यार इसको मैं मिसलीडिंग में या उस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में तो नहीं आ रहा। थर्ड थिंग व्हाट एआई सॉफ्टवेयर कैन डू नाउ इज क्रिएट अ वेरी वेरी बिग रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म्स। तो आप में से जो भी इंटरनेशनली काम करते होंगे, प्रोबेबली दे वुड हैव लुक्ड एट इट, इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप रिक्रूटमेंट बेस्ड स्ट्रक्चर जो है, इनविटेशन स्ट्रक्चर जो है, इनवाइट करने का स्ट्रक्चर है, द कंप्लीट कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर इज नॉट कमिंग ऑन एआई प्लेटफॉर्म, जिसमें एक बंदा जो तमिल में बैठा है या कन्नड़ में बैठा है उसको पंजाबी से बात करनी है, दे कैन क्रॉस एंड क्रिस क्रॉस एंड टॉक। ये तीन रेलेवेंट एआई यूजेस तो मैंने इंडस्ट्री में देखे हैं विच आर ग्रोइंग वेरी वेरी रैपिडली: कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मिसलीडिंग क्लेम्स अबाउट प्रोडक्ट एंड इनकम, अपनी स्पीच को वैलिडेट करना, दैट इज अगेन हैपनिंग कि आप स्टेज पे जाके ऐसा ना कुछ बोल दें जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के अगेंस्ट है। एंड तीसरा पार्ट इज रिक्रूटमेंट स्ट्रक्चर। देयर इज एन एप्लीकेशन विच आर अवेलेबल वेयर यू कैन एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया बिल्ड अ मैसिव प्लेटफॉर्म, और मल्टीपल लैंग्वेजेस प्लेटफॉर्म में आप कर सकते हैं। इसमें अगर और कुछ कोई ऐड करना चाहे कि किसी और तरीके से वो एआई को यूज करते हैं चैट जीपीटी के अलावा, आई बिलीव नाउ गूगल की जॉब चैट जीपीटी ने खा ली है और उसकी शायद डीप सीक खा लेगा। And now, if you tried Kimi also and Copilot, amazing platforms हैं ये AI के. So anyone wishes to add anything on this thing? You are Oh, right. You know, what happened is ChatGPT is now the grandfather it has become. क्योंकि उसके बाद it's DeepSeek, then followed by Qwen, then Grok AI and whatnot. एक के बाद एक evolve हो रहे हैं, and everyone is better than the previous one. So that's what I said कि either you drive AI today or AI drives you tomorrow. yes, true. I think there will be कुछ AI के अलावा कुछ नहीं होगा. I mean, let's accept it. I don't think so Yeah, कि AI will kill you. The very well moment said. AI comes into the healthcare segment, जो भी health analysis वाले segment पे, there is a regulatory thing which is stopping them. The moment that market or thin line gets breaked up, so obviously things will move on a very rapid scale then. Now, one of the example that we used AI is wanted to show this has been done by Puneet, Sweetie, and Josna, who are the part of the team. What they do is actually very interesting thing. After every training session, the entire participants gets a game on AI
सो दैट कि वो उन्होंने 4-6 घंटे में जो भी सीखा होता है वो उनको क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में, गेमिफिकेशन के फॉर्म में आ जाता है। तो आप ये 300, 500, 700 प्लेटफॉर्म के साथ करते हैं, इसका रीजन बहुत सिंपल सा था कि एटलीस्ट पता चल जाता है कौन सा कंपोनेंट है जो समझ में आ रहा है, जो नहीं आ रहा है। So thank you, Josna, Puneet, Rajat, Deep for creating this amazing gaming platform for direct sellers और learning platform है ये उनके लिए। Okay, so now with this we probably come to the end of the session. So this is what the last question was on AI. Rest, I'll open the floor for any discussion that we want and anything we would like to discuss. You all guys have been great, but I think हमने भूपेंद्र जी को ज्यादा टाइम नहीं दिया, तो we will start from भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, any closing word? आप थोड़ा लेट आए, so we were not able to set up the entire section, so we will start from you. Anything you would wish to, give us an input on? Thank you so much, Rahulji, and thank you so much to each and every one of you for being a part. मैं जैसे एक डिस्कशन बीच में आया था कि विच ट्रेनिंग डोमेन इज द बेस्ट एंड हाउ ट्रेनर्स कैन ग्रो। आई थिंक विच वन स्किल ट्रेनर या फिर समथिंग। तो वहाँ मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि एनी ट्रेनर हु हैज़ गॉट massive impact when it comes to transforming attitude and personalities of people, मुझे लगता है कि दे आर एबल टू ग्रो वेरी फास्ट, क्योंकि वो एक ऐसा डोमेन है जो जिसका कस्टमर हर एक आदमी है, और जहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी सिंगल इंडिविजुअल इज गोइंग टू वंस इन अ वाइल गो थ्रू दैट। बाकी जैसे स्किल ट्रेनर्स आर वेरी वेरी गुड, बट वहाँ पे मार्केट जो स्किल है उसी के अराउंड रह जाता है। सो आई थिंक जितने भी लोग ट्रेनिंग में हैं एंड दे वांट टू ग्रो, इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशनल, बट इट्स मोर अबाउट आपके पूरे बिहेवियर को शिफ्ट करना। सो बिहेवियरल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट्स में भी बहुत ज़बरदस्त चलता है, एंड बिहेवियरल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट जब मैं आज ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ और एवरी सिंगल डे वी आर मीटिंग सो मेनी पीपल, तो बिहेवियरल ट्रेनिंग इज वन ऑफ द सुपर हिट पार्ट्स। एंड जितने भी ट्रेनर्स, चाहे एंथनी रॉबिन्स हों, चाहे वो जॉन डी मार्टिनी हो, चाहे वो जो डिस्पेंजा हों, चाहे वो इंडिया के कुछ टॉप लीडर्स हों, ऑल दोज ट्रेनर्स जो कि बिहेवियरल फ्रंट पे बहुत ही पावरफुल हैं, वो ही ट्रेनर्स के पास लाखों लोगों का मार्केट है। बाकी जितने भी ट्रेनर सिर्फ स्किल सिखा रहे हैं उनका मार्केट अच्छा है, लेकिन दैट इज लिटिल। जितने भी प्रोसेस ट्रेनर्स है दे आर ओनली स्पेसिफिक टू इंडस्ट्रीज, एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट, है ना। हर किसी का अपना अपना एक डोमेन रहता है। बट मुझे लगता है कि जितने भी ट्रेनर्स जिस भी लेवल पे हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली इफ दे कम टू द बिहेवियरल शिफ्ट काइंड ऑफ अ थिंग, तो बहुत तेजी से दे कैन इवन मेक देयर ब्रांड्स, दे कैन ग्रो एंड दे कैन इम्पैक्ट ईच एंड एवरी फॉलोवर ऑफ देयर्स। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कई सारे ऐसे डायरेक्ट सेलर्स भी हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं। सो देयर वाज वन जेंटलमैन जो कि 16 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में था, एंड 16 साल से वो डायरेक्ट सेलिंग के सारे ट्रेनिंग्स भी ले रहा है, सारे लीडर्स को भी सुन रहा है, सारे कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड कर रहा है, लेकिन किसी भी साल किसी भी महीने वो 25,000 रुपए से ऊपर नहीं पहुंच पाया। एंड अब कोई कहेगा उसके स्टार्स खराब है, कोई कहेगा उसकी पर्सनैलिटी खराब है, बट जब वो हमारे पास आया तो आई कंडक्ट अ प्रोग्राम विच इज टूवर्ड्स बिहेवियरल शिफ्ट कॉल्ड इग्नाइटिंग द स्पार्क। एंड जब वो वहाँ बैठा और उसके बाद जब वो वापस गया, तो पहले मेरे पास 6 महीने बाद आया, बोलता है सर मैंने पहली बार जिंदगी में 75,000 कमाए। थोड़े दिन बाद फिर आया, बोलता पहली बार मैंने 1.25 लाख रुपए कमाए। एंड 1.25 साल के 1.5 साल के बाद जब वो आया तो उसने मेरे को पूरा एक 6 महीने का स्क्रीनशॉट, मतलब पूरा स्टेटमेंट दिखाया, बोला मेरी एवरेज इनकम पिछले 6 महीने की 2,66,000 रुपए रही है। तो आई थिंक ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों शिफ्ट है। देयर वाज वन वन जेंटलमैन जो कि अगरबत्ती सेलर था, और वो 49 ईयर्स का था, बिल्कुल गांव के एक छोटे से झोपड़े में रहता था, एंड हर रोज ठेला उठा के उसमें 100-200 अगरबत्ती के पैकेट लेके दुकान दुकान जाता था। पूरे महीने में वो मुश्किल से 10,000, 12,000, 15,000 रुपए कमा पाता था। एंड बिल्कुल महाराष्ट्र के एक देहात से, एक छोटे से गांव से, जब उसने बिहेवियरल शिफ्ट आया कि बिहेवियरल शिफ्ट और सम स्ट्रेटजीज ऑफ ग्रोइंग द बिजनेस, सेम पर्सन इन जस्ट 6 months टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग अराउंड 1.25 लाख रुपए के आसपास, 1 लाख रुपए के आसपास।
एंड ऐसी जो बिहेवियरल शिफ्ट्स हैं वो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी शिफ्ट कर सकते हैं। इवन मैं आपको हर तरह के एग्जांपल दे सकता हूँ। अभी 10 दिन पहले देयर वाज अ लेडी जिसको 2.5 साल से ऑक्सीजन लगा हुआ था, एंड शी हैज टेकन ट्रीटमेंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द डॉक्टर्स। जब उसके माइंड के थॉट पैटर्न्स को चेंज किया तो आफ्टर 7th डे वो अपनी से नीचे उतर के खुद बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के घूम के आई, और उस दिन उसने हमसे बिना सपोर्ट के बात की। तो मुझे लगता है behavioral patterns are the biggest roadblocks for people, and all the trainers who are supporting the training industry, they should learn to shift this, because even if it is a skill trainer, आप अगर 8 घंटे स्किल सिखा रहे हो तो उसी 8 घंटे में 7 घंटे आप स्किल सिखाओ, 1 घंटा आप बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करो। बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है शिफ्टिंग देयर थॉट पैटर्न्स, शिफ्टिंग देयर बिलीफ लेवल्स। और ये सब होने के बाद तो मैं कहता हूँ कि मिराकल्स होते हैं। और दैट्स इट, राहुल जी। Thank you so much, Bhupinder ji, for good words. Actually, mein, there's a very interesting thing. You know, Shiv was discussing day before yesterday. कहता कि सर जो डायरेक्ट सेलिंग बाय प्रोसेस इज ओनली थ्री थिंग्स एक्चुअली. वन इज इनवाइट, यू हैव दिस इन्फॉर्म, एंड थर्ड इज इम्प्रूव. एक्चुअली द एंटायर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कम्स इन थ्री एस्पेक्ट. एंड शिव वो कह रहा था कि सर एक्चुअली में ना जो इम्प्रूवमेंट पार्ट है ना, वो एज अ डायरेक्ट सेलर इम्प्रूवमेंट नहीं होना चाहिए, एज अ ह्यूमन बीइंग इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. सो वंस यू इम्प्रूव एज अ ह्यूमन बीइंग, देन एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस. So True. that 3A training comes from there only. So let's have a last closing words. Ikram bhai, your last closing words for today. Anything, your feedback for the day? Thank you very much. It was a very good exposure, pleasure for me to be a part of this panelist. काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ मैंने बहुत सारे नोट्स भी लिखे हैं जिससे कि आई विल टेक इट फॉरवर्ड सर. थैंक यू वेरी मच. Shiv bhai, your closing words. Thank you, thank you. It was a wonderful platform you have created. But I would like to come to again to your first question, and I would like to ask you one question: why you brought us online together? So we would, matlab, I would definitely would love to be part of this community on a physical training as well, no physical conclave of physical summit, so that we can discuss each other and we can know each other in a better way. That's a good Thank idea. you. So आप सब Thank you. जब भी दिल्ली, आप सब में सबसे ज्यादा दूर तो देखो शताब्दी है. एंड जैसे दीप्ति जो आज उसने ज्वाइन करना था, तो दीप्ति वाज अनवेल टुडे. सो आप में से जब भी लोग दिल्ली आ रहे हो, जब शताब्दी दिल्ली आ रही हो, तो उसके आसपास आप सब लोग आ We जाना, all क्योंकि can meet. शताब्दी I'm दिल्ली a नहीं call आती. away. हाँ. और वी कैन डू इट इन रांची ऑल्सो, बिकॉज इकराम भाई इज इन पटना, आरपी भाई इज वेरी कंफर्टेबल विद बिहार, शताब्दी इज इन कोलकाता. ओनली क्वेश्चन विल कम फ्रॉम इज विनय भाई एंड शरद भाई, वो बैंगलोर में है. But it's a good idea, Shiv. I think we guys should meet, and I'll try to, create a group where we all can chat and discuss whatever the best thing is there. And Shiv has always been very, very helpful for me, actually. Sometimes it happens is when you cross 50, I will be crossing 50 in several few months, you start having self doubts, so a lot of things. So I always call up Shiv in the night at about 11 o'clock and chat and discuss something, because your every idea needs a validation, and you need to talk to someone. So Shiv is my whatever, he plays a devil advocate with me, actually, more or less of the time. Shatabdi, your closing words. यस सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आज सही में बहुत कुछ जानने के लिए मिला, बहुत कुछ हम लोग सीखे भी. मैंने भी नोट बनाया है, और हम लोग को भी पता चला, स्पेशली मुझे, कि कहाँ कहाँ जगह में एज अ ट्रेनर आई नीड टू वर्क ऑन दिस. क्योंकि बहुत सारी जगह में लगा कि हाँ, यहाँ पे हम लोग अगर इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आने वाले समय में और भी ज्यादा इनपुट हम लोग एज अ ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ पे हम लोग शेयर कर पाएंगे. एंड थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू शताब्दी. मैं आपको इकराम और शताब्दी के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा. एक्चुअली में इकराम इज वन जेंटलमैन वेयर आई फील कि अगर कभी 8 घंटे का कोई प्रोग्राम हो, जिसमें एमसी, होस्ट, वेलकम से लेके आपको मेंटरिंग से लेके कोचिंग, एंड दिस इकराम भाई का जो डेसिबल है, डेसिबल इज द क्राइटेरिया, जो साउंड का क्राइटेरिया होता है. तो इकराम भाई का अकेले का डेसिबल 100-120 डीबी से कम नहीं होता. तो ही कैन टॉक एट अबाउट 100 डेसिबल. जो कलकत्ता के ईडन ग्राउंड का क्राउड का जो शोर होता है, वो अकेले बिना माइक के बोलते हैं इकराम भाई. ह्यूज पावर ऑफ गाय इकराम भाई. Shatabdi, the youngest of the lot. Shatabdi, we haven't met personally. Was over. We have only spoken over the phone. शताब्दी का थॉट प्रोसेस अबाउट ट्रेनिंग मुझे बड़ा पसंद था. वेरी डिसिप्लिनरी थॉट्स एंड वेरी एक्शनेबल थॉट्स हैं शताब्दी के. सो शताब्दी, whenever you're in town, you're most welcome.
Sharad bhai, last final words, then we'll move on to Somnath ji after that. Yeah, it was a very nice question, Sharad sir. bhai. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट्स लेके आने के लिए आप बहुत सारा प्रयास आप कर रहे हो। ये मुझे हर कुछ भी आप कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो। और यहाँ से एक अच्छा शुरुआत हो जाए कि हर एक ट्रेनर एक साथ मिलके उनका माइंडसेट रीड करने के लिए और उनसे कुछ सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म आपने आज क्रिएट किया है। सो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। ये मेरा पहला मीटिंग था इन बड़े बड़े दिग्गजों के साथ। तो थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। ऐसा आगे आगे ज्यादा ज्यादा करते रहो। थैंक यू शरद भाई, अब अगली बार दिल्ली में करेंगे तो आपको जरूर बुलाएंगे। एंड सोमनाथ जी, योर लास्ट क्लोजिंग वर्ड्स। Sorry, I was on mute. So, first of all, thank you so much, Rahulji, for creating this platform where we all like-minded people got connected. And trust me, ये बहुत जरूरी है from the training point of view. Like you said, na, how you update yourself. So this is also a platform where we get to update ourselves. एक जैसे माइंडसेट के लोगों से कनेक्ट करना, उनसे उनके इंडस्ट्री ट्रेंड समझना, उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस समझना और अकॉर्डिंगली डुप्लीकेट अपने वहां पे करना. सो इट्स ऑल लाइक अ वेरी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर एंड दिस इज वेरी वेरी मच of a credible thing that you have started, Rahul ji, and I would really appreciate कि इसको please continue रखें. It will really add value to each and everyone's life and career, and this is very promising. Thank you so very much, Rahul ji, for giving me this opportunity to be a part थैंक यू of this सोमनाथ जी। amazing आरपी, audience योर today. लास्ट वर्ड्स। थैंक यू सो मच आरपी। Thank you very much to all participants and especially Rahul sir and entire People by team direct selling today also. काफी अच्छा लग रहा है और कहते हैं कि ट्रेनर्स को ट्रेनिंग कहाँ से मिले, क्लाइंट का एक पार्ट था कि हाउ ट्रेनर्स अपडेट देमसेल्फ. सो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर एवरी ट्रेनर विल अपडेट देमसेल्फ एंड दे कैन डिलीवर इट टू देयर टीम्स. और काफी ग्रो करना है. 2.5 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स के लिए ये 10-15, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में 100 ट्रेनर होंगे मान लेता हूँ. ये 100 ट्रेनर अभी काफी नहीं है, ट्रेनर्स की संख्या भी काफी बढ़ेगी. मुझे लगता है कम से कम 2.5-3 करोड़ लोगों की ट्रेनिंग के लिए तो 3,000 लोग होने ही चाहिए. तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ट्रेनर एज ए मैनेजमेंट अपने नीचे और भी ट्रेनर्स की टीम डेवलप करी जाए. डायरेक्ट सेलिंग को एक बहुत बड़े मकाम तक पहुंचाना है और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर के जरूर पहुंचाएंगे. अपनी आंखों के सामने मैं ये सपना साकार होता हुआ देख पाऊंगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच। पुनीत, ज्योत्सना, एनी लास्ट वर्ड्स? पुनीत भाई, पुनीत भाई म्यूट पे। जी सर। लास्ट वर्ड्स भाई, आपके लास्ट वर्ड्स के बगैर सेशन खत्म नहीं होता। नहीं सर, अच्छा, अच्छा for से। most people who don't know Puneet, Puneet is the actually the brain behind PeopleByte. PeopleByte is a consulting company which is now about a 10 million rupee consulting company. It's नहीं, 10 million से ज्यादा हो गई actually में. So PeopleByte has about 400 clients and Puneet does compliances for about 400 clients in India. And he is the least visible guy industry में, ये नजर नहीं आएगा सबको. But he's the brain. So Puneet, last statement from you, and then probably we can thank everyone and close this session now. थैंक यू राहुल सर, आपने आज इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। काफी ट्रेनर्स के साथ जो आज डिस्कशन हुआ, काफी चीजें सीखने को मिली। और हो सकता है कि आपके सेशन के थ्रू इनको भी कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें मिली हों, जो ये आगे टीम्स को प्रोवाइड कर सकते हैं नॉलेज। तो मुझे लगा पुनीत कहेगा कि मैं भी को ट्रेनर बनने की सोच रहा हूँ कब लाइफ का काम छोड़ नहीं के। सर, वो नहीं हो पाएगा। Okay. Thank you so much, gentlemen, ladies, and the people who have joined us. Thank you, Josna. Thank you, Sweetie. Thank you, Rajat Bhai, and thank you everyone for organizing this thing. We'll be editing some part of it and releasing it on YouTube, and then we'll share the link with everyone so that they can share it. And let's keep on planning. आप में से कोई भी लोग दिल्ली हैं तो just meet us up. We based out of Netaji, Subhash Place, and Karol Bagh, wherever you guys are comfortable, and let's have lunch together. Okay. Thank you so Thank much you, for sir. coming Thank you once very again. much, sir. Thank you, sir. Have a Thank nice day, you. थैंक everyone. Take Thank you care. so much, You too, bye. everyone. यू Good day, सर। everyone. थैंक यू थैंक सर. यू सर। Thank you.